ઓકે, તો મારા વાલીડાર બધા રોટેરિયન મિત્રો, હવે બધા તમે બધું આપણું ચીટચાટ પૂરું થયું છે, એટલે તમે જો શાંત રહેશો તો આપણા જે ઇન્વાઇટી છે વિનોદભાઈ, એમને કંઈક થોડું સાંભળી શકશું. એટલે આપ પોતે છાના રહેશો અને આપના માઇક્રોફોન બધા પણ શાંત કરશો તો આપણે કંઈક આગળ સાંભળશું. આપણે આપણા જ પ્રેસિડેન્ટ વત્સલભાઈ શાહને કહીએ કે મીટિંગ હવે ખુલ્લી મૂકે. Yeah, meeting is called to order. આપણે બધા છે ને પોતે મહાન ઘરમાં સિંગરો હોઈએ છીએ, સરસ મજાનું વાતાવરણ ઊભું કરીએ, જાત જાતના ગીતો ગાઈએ, સંગીત ને પ્રાર્થનાઓ કરીએ, પણ એવું છે કે જાહેરમાં જ્યારે આવીએ ને ત્યારે થોડાક આમ વ્યવસ્થિત માણસો બધા આપણી પાસે હોય તો સારું રહે. એટલે મંગળ વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે આપણે ભાવનાબેન સુતરિયાને વિનંતી કરીએ કે એક મંગલ પ્રાર્થના કરે. બાય ધ વે ભાવનાબેન બહુ સુંદર ગાય છે, એ કદાચ મોટા ભાગનાને ખબર હશે. Thank you so much. Good evening to all Rotarians. હું ભાવના સુતરિયા. મારી એક ખૂબ જ ગમતી પ્રાર્થના છે, એનો એક અંતરો ગાઈ અને પછી હું વિરમીશ. તો એ પ્રાર્થના હું શરૂ કરું છું. નૈયા ઝુકાવી મેં તો જો જે ડૂબી જાયના, ઝાંખો ઝાંખો દીવો મારો જોજે રે બુઝાયના. નૈયા ઝુકાવી મેં તો જોજે ડૂબી જાયના, ઝાંખો ઝાંખો દીવો મારો જોજે રે બુઝાયના. સ્વાર્થનું સંગીત ચારે કોર વાગે, સ્વાર્થનું સંગીત ચારે કોર વાગે, કોઈનું કોઈ નથી દુનિયામાં જે, કોઈનું કોઈ નથી દુનિયામાં જે. તનનો તંબુરો જોજે બેસુરો થાયના, ઝાંખો ઝાંખો દીવો મારો જોજે રે બુઝાયના. નૈયા ઝુકાવી મેં તો જોજે ડૂબી જાયના, ઝાંખો ઝાંખો દીવો મારો જોજે રે બુઝાયના. થેન્ક યુ. એવું છે કે આપણે જે પેલા 4-વે ટેસ્ટ છે ને, એ આમ ચાર બાજુ જતા 4 રસ્તાઓ નથી, એક અંકોડું છે. અને એ આપણે માટે આજ સવારે જ મેં જોયું પોસ્ટ કે એ આપણે માટે મિરર સમાન છે રોટરી માટે. મારું એવું સજેશન છે વત્સલભાઈને અને આપ બધાને કે કદાચ આપણે એક પ્લેજ તરીકે જો લઈએ, એક પ્રતિજ્ઞા તરીકે, અને જ્યારે જ્યારે એ બોલાય ત્યારે આપણે બધા આપણો જે આપણો અનુકૂળ હાથ હોય આગળ રાખીએ અને કાં તો સાથે બોલીએ અથવા તો એ સ્પીકર જ્યારે બોલતા હોય ત્યારે એમની સાથે રહીએ, એવું મારું એક સજેશન છે. આપ સૌ વિચારો, કારણ કે એ ઘણી ગંભીર બાબત છે. હું ડોક્ટર દીપક દંતારાને રોટરી 4-વે ટેસ્ટ બોલવા માટે આમંત્રું છું. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. બહુ વખત પછી આમ જોવા જઈએ તો સ્ટેજ ઉપર આવવાનો મોકો મળ્યો છે, કે બોલવાનો મોકો મળ્યો છે, એનો ખૂબ આનંદ છે. અને આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સે સમથિંગ ઓન ધ બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ રોટરી ઇન્ટરનેશનલ. ઇટ ઇઝ 4-વે ટેસ્ટ. અને જેમ વાત કરીએ એમ આઈ થિંક વી શુડ રેઝ અવર રાઇટ હેન્ડ and say 4-વે ટેસ્ટ. First, is it the truth? Second, is it fair to all concerned? Third, will it build goodwill and better friendship? And 4,
will it be beneficial to all the concerned? These are the four-way tests, and they are the basic principles of our Rotary International. Thank you very much. Thank you. થેન્ક યુ ડોક્ટર. એમાં એવું થયું કે આપણે તો માલતા હતા મજાથી કે હવે ગુરુવાર છે ને હાસ્યનો પ્રોગ્રામ છે અને ખુશી ખુશી બધું કરશું ને સાંભળશું. ત્યાં ઘટના બની, રશ્મિભાઈનો ફોન આવ્યો કે તમારે એમઓસી કરવાનું છે. એટલે આમ તો પ્રેમનો સંદેશો જ હતો, પણ મારી માટે તો લગભગ આજ્ઞા સમાન હતી, આપણા બધા માટે. એટલે આ ઘટના ઘટી એટલે આપણે તો ચોક્કસના બની ગયા. મને રશ્મિભાઈની હિંમત ઉપર ખરેખર દાદ આપવી પડે કે મારા જેવા પ્રમાણમાં એટલા બધા આમ ખુલ્લા માણસ નહીં, એવા માણસને તમે આટલી જોખમ લઈને બોલાવીને હાસ્યના પ્રોગ્રામમાં એમઓસી કરવાનું કહ્યું. આઈ મસ્ટ એપ્રિશિએટ રશ્મિભાઈ એન્ડ ઓલ ઓફ યુ. એટલે પછી આ દુર્ઘટના ઘટી એટલે મારી સાવધાની વધી. હા, કારણ કે પછી રશ્મિભાઈ પૂછતા હતા ને એટલે મેં પછી એમ થયું કે કંઈક તો આવું બધું શર્ટ બટ પહેરી આવું. આમ મલેશિયાથી લઈ આવેલું એટલે પેલા લોકો ત્યાં બૈરાઓ લુગડા પહેરે ને, મેં કહ્યું આપણે કંઈક તો કરવું પડશે ને, એટલે આવું બધું હું પહેરી આવ્યો છું. અને મને ખાતરી છે કે હવે તમે બધા મારા સ્નેહીઓ છો એટલે હસશો તો ખરા જ. એટલે આ બધા હસશો તમે, એવી વાત છે. હવે બીજી વાત એવી છે કે એકવાર હું એક તળાવને કિનારે બેઠો હતો, ત્યાં જગલો આવ્યો, આવીને રોવા માંડ્યો. ખૂબ રોવા માંડ્યો એટલે મેં પૂછ્યું પેલા તું શું કામ રોજ પણ આટલું બધું? તો કે મારા લગ્ન નથી થતા. લગ્ન નથી થતાનું કારણ શું? અરે કે જેટલી કન્યા બતાવી બધીને મારી માં ના જ પડે છે. તો કે તારી માં ના પાડી દેતી હોય તો એવું કામ કર કે તું તારી માં જેવી છોકરી લઈ આવ કે જે એના જેવા કપડા હોય, એના જેવા ચહેરો મોરો હોય. તો કે એ કર્યું. તો કે તો શું થયું? તો કે તો મારા બાપ ના પાડી દે છે. આ વાત છે આપણા પદ્મશ્રી જાણીતા શાહબુદ્દીનભાઈ રાઠોડની અનેક હાસ્ય કણિકાઓમાંની એક છે. એને હું જરૂરથી યાદ કરું છું. એક કહેવાનું કે છેલ્લા ઘણા વખતથી જે ગંભીર વાતાવરણ આપણે ત્યાં હતું, ગમગીન ભરેલું, એમાં આઈ મસ્ટ એપ્રિશિએટ વત્સલભાઈ એન્ડ હિઝ ટીમ કે એક ખુલ્લા માહોલ ભર્યો આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે. કારણ કે હાસ્ય ઇનાવે એક ગંભીર બાબત છે અને એની અંદર વિનોદભાઈ જેવાને આમંત્રિત કર્યા, અર્પિતભાઈએ એક ટોન છેલ્લા 2-3 વખતથી મૂવ કરેલો અને વત્સલ એ આગળ લઈ જાય છે. આપને અભિનંદન. મને લાગે વત્સલના મોઢેથી જ વધારે એ વિશે સાંભળી. આજના પ્રેસિડેન્ટ વત્સલ શાહને એમના વિશે બોલવા કહું છું. Thank you, Parimal bhai. I welcome everyone. I welcome Vinod bhai, our speaker, DG and Mehul bhai, PDG Shashank bhai, PDG Ravin bhai, all dignitaries from other clubs as well, and any other PDG I might have missed, and guests. We are happy to begin our meeting, which is both about Rotary and yet humorous. And I felt that combination was needed after the last 1.5 years of depressing time we've seen. વિનોદભાઈ એમના નામ જેવા જ છે, બહુ વિનોદી સ્વભાવના છે અને એમને પહેલા અમે સાંભળેલા બી છે. એમની વાતોમાં ખાસું વિટીનેસ હોય છે, સટાયર બી હોય છે અને ખૂબ મજા પડે છે. દેટ ઇઝ વાય આઈ થોટ ઓફ હિમ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. અને બધા મને કહે કે ભાઈ ઝૂમ મીટિંગ કેમ હજી ચાલુ છે? તો સારા સમાચાર આપું કે નેક્સ્ટ વીક વી આર ડુઈંગ અ ફિઝિકલ મીટિંગ એટ અ વેરી ગુડ વેન્યુ. એ દીપેન છેલ્લે અનાઉન્સ કરશે, એટલે એવરીવન ઇઝ રિક્વેસ્ટેડ ટુ સ્ટીક ઓન ટિલ ધ એન્ડ. આપણી જોડે આપણા રોટ્રેક્ટર પ્રેસિડેન્ટ બી છે, એટલે સોરી રોટ્રેક્ટ ક્લબ ઓફ ઇન્ડસ, આપણી જે એસોસિએટેડ રોટ્રેક્ટ ક્લબ છે એના પ્રેસિડેન્ટ નિશાંતભાઈ અને સેક્રેટરી વરુણ લુહાર બી છે. એ લોકો ઇન્સ્ટોલેશનમાં નહોતા આવી શક્યા કારણ કે એમનું પેરેલલ ઇન્સ્ટોલેશન ચાલતું હતું, ઝોનલ ઇન્સ્ટોલેશન. અને આ રોટ્રેક્ટ ક્લબ હેઝ ગોટ 4 અવોર્ડ. જે લાસ્ટ યરની ટીમ હતી એને બેસ્ટ પ્રોફેશનલ સર્વિસ પ્રોજેક્ટ મળ્યો, અવોર્ડ મળ્યો, આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ધ યર અવોર્ડ મળ્યો. આ વખતેની જે ટીમ છે એ લોકોને હાઈએસ્ટ બ્લડ ડોનેશન પાર્ટિસિપેશન, 15 મેમ્બર્સે બ્લડ ડોનેટ કર્યું અને હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઇન ઝોનલ ઇન્સ્ટોલેશન, એ અવોર્ડ્સ મળ્યા. વિનોદભાઈ છે એટલે મેં બી 1-2 રોટરીના જોક્સ પ્રિપેર કરેલા, with all due respects and in a very lighter note I'd like to tell them.
બધા મને કહે કે તમને પ્રેસિડેન્ટ છો તો કેવું ફિલિંગ આવે. એટલે મને યાદ છે ભરતભાઈ સુરતીનું અલવિદા પ્રોગ્રામ હતો ત્યારે એમના સેક્રેટરી જયેશભાઈ મજમુનદાર એમને કીધું કે આખો દિવસ ઘરે લગ્ન હોય ને એવું ફિલિંગ આવે. અને કલ્પેશભાઈ આપણે મારા ઇન્સ્ટોલેશનમાં કીધેલું કે પ્રેસિડેન્ટને આખો દિવસ હરી ભરી ઓર કરી એ જ વિચાર આવતો હોય. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. અને એક બીજો જોક છે કે એકવાર હું ટ્રાવેલિંગ કરતો હતો અને રસ્તામાં એક શહેર આવ્યું નાનું, એટલે મને થયું કે ચલો અહીંયા રોટરીના કોઈ પર્સન હોય તો એમને, એટલે ત્યાં રોટરી ક્લબ હતી એટલે હું મળતો જાઉં. એટલે ડિરેક્ટરીમાંથી મેં શોધ્યું તો એક પાસ પ્રેસિડેન્ટનો નંબર મળ્યો. એટલે મેં એમને ફોન કર્યો કે હું આપને મળવા માંગુ છું, હું આપના ઘરે આવું. તો હી વોઝ મોર દેન હેપી ટુ વેલકમ મી અને વી હેડ ટી અને ઓલમોસ્ટ બ્રંચ જેવું નાસ્તો બધો હતો. અને વિચ ઇઝ રોટેરિયન હોસ્પિટાલિટી ઓબ્વિયસલી. પછી એમના વાઈફ આવ્યા અને છોકરાઓ આવ્યા, એટલે એમના 4 છોકરાઓ આવ્યા તો એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતા હતા કે ભાઈ આ કનુ બોર્ન ઇન 2001, આ મનુ બોર્ન ઇન 2002, આ દંજી બોર્ન ઇન 2003 અને છેલ્લો છોકરો આવ્યો બોર્ન ઇન 2005. એટલે મેં કીધું કેમ 4 મિસ થઈ ગયું, 2004માં કોઈ બોર્ન નથી થયું? એ કે એ ટાઈમે તો આ રોટરીના પ્રેસિડેન્ટ હતા. Yeah, so friends, let's enjoy tonight with Vinod bhai. Thank you. તમે પેલા સુરેન્દ્ર શર્માજીને જાણો છો ને? પેલા આમ ટાઈટ, ના હસે ના કશે, ઊભું સ્ટેચ્યુ. એમની પેલી એક જાણીતી વાત છે, હું રિપીટ જ કરું છું કે ये लुगाइयों के लिए तो बहुत सब व्रत है, करवा चौथ उससे सबसे बड़ा व्रत है. अगर एक बार करवा चौथ टूट गया तो यहाँ आदमी खत्म. मगर हमारे आदमियों के लिए एक भी ऐसा व्रत नहीं है कि साला एक भी टूटे और लुगाई को जुकाम भी हो. दूसरी बात ये है कि ये सब जो पावर्स है ना वो लुगाइयों को ही है. लक्ष्मी जो विद्या चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ, सरस्वती के पास जाओ, पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ, एनर्जी चाहिए दुर्गा पे पास जाओ. साला आदमी के पास तो कुछ है ही नहीं. और ये अपना शंकर देखो, बेचारे के पास न कपड़े का ठिकाना है, पर्वत पर बिठा दिया है, ऊपर से सांप डाल दिया है. तो इसमें अगर वो तांडव नहीं करेगा तो क्या बांसुरी बजाएगा? अपना प्रिय शर्माजीने याद करता બીજી અગત્યની વાત એવી કહેવાની છે કે આમ તો છે ને હાસ્ય એ બહુ ગંભીર વિષય છે. ઓશોએ કીધું છે કે હાસ્ય એ મેડિટેશનનો દરવાજો છે. જ્યારે તમે હસતા હો ને ત્યારે તમારા વિચારો બંધ થઈ જાય, અને જ્યારે વિચાર બંધ થાય ત્યારે આપણે મેડિટેશનની અવસ્થામાં ફેરવાઈ જઈએ છીએ. ચાર્લી ચેપ્લિન જે આપણે માટેના કરુણ હાસ્યના એક ઉત્તમ અદાકાર હતા, સર ચાર્લી ચેપ્લિન, એમણે જે કહ્યું છે કે what a sad business it is, a laughter is. Making fun is a serious business. હાસ્ય એ કરુણતામાંથી જ ઉદ્ભવતું મોટા ભાગે સિચ્યુએશન છે. આપણે લોરેલ હાર્ડી છે કે રોરેન એટકિન્સન્સ એટલે કે આપણા મિસ્ટર બીન છે, કે આપણે ત્યાં પેલા શું કહેવાય આપણા ઇન્ડિયન કલાકારો બધા છે, જોની લિવર ને બધા, અલ્ટિમેટલી એક્ટ થી એ લોકો ઊભું કરવા ટ્રાય કરે છે, હાસ્ય ઊભું કરવા ટ્રાય કરે છે. અને માનવ જાત છે ને, વી આર વેરી લકી ટુ હેવ બીન એબલ ટુ લાફ. દુનિયામાં કોઈ પ્રાણી એ કરી શકતું નથી. અને ઇટ ઇઝ સેડ કે લાફ્ટર ઇઝ અ કનેક્શન બિટવીન ટુ ફ્રેન્ડ્સ. ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ડ શોર્ટેસ્ટ કનેક્શન બિટવીન ટુ ફ્રેન્ડ્સ. એટલે આ બધા સંજોગોની અંદર મને એમ થયું કે જો કોઈ હસાવી શકે, અને હસવા કરતા હસાવવું એ તો ઓર અઘરું છે. હવે વિનોદભાઈ એ જે ચેલેન્જ ઉપાડી છે તો એમના વિશે જ આપણે કંઈ વધારે સાંભળવા માટે હું હાર્દિક ઠક્કરને વિનંતી કરું કે વિનોદભાઈનો પરિચય આપે. Thank you, હાર્દિક. હા. Am I audible? Yes. Thank you. વિનોદભાઈ ના ઇન્ટ્રોડક્શનની શરૂઆત હું કરું એક શાયરીથી. हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी खासियत भी खुशबू दे जाती है. प्रोग्राम पत्या પછી તમને વિનોદભાઈની ખાસિયત
ખ્યાલ આવી જ જશે દરેકને. હું એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી રહ્યો છું. વિનોદભાઈ આપણા ગુજરાતના જ છે, પાટણ થી બિલોંગ કરે છે. 1964 4 જુલાઈ એમની બર્થડે છે. Vinodbhai, by education, he is BSc Chemistry from Gujarat University. He started his career in Mumbai as a site supervisor in 1986. In 1989, he started his own real estate agency, and he is founder and CEO of Square Feet India Properties. He is also a highly professional real estate professional with proven analytical abilities in organizational skill, as well as 30 years of rich real estate project marketing experience. He has more than served 10,000 satisfied customers. His service to real estate industry has a long journey. He is member of NAR India. It is Association of Realtors. More than 4,500 members are there. He is founder and life member of the Association of Real Estate Agents in Mumbai. He was president of the area group during 2004 to 6. He was instrumental in conduction of many real estate conferences. He was chairman of the 9th NAR India annual conventions. He was PR head of NAR India for 2018 and 19. He is also running a broker key Pathshala called Zoom webinar program for guidance of the new real estate consultants in the industry. He is currently District Avenue Chair. Now I am sharing his Rotary journey. He is currently District Avenue Chair in Punah Nirman. He was invited in Rotary Club of Mumbai Daisar in 1995. He has been club president. He has been a major donor. He won the Best Rotarian Award twice. He has been Assistant Governor 2008-9. He has been District Secretary in 2009 and 10. He has been Governor Special Officer of the Rotary Foundation, TRF 2012 and 13. Co-Chairman VTT 2013-14. District Service 14 for the year 2014-15. Avenue Chair membership for the year 2015-16. Chief Sergeant at Arms for the year 2017-18. Chief Sergeant and Sergeant at Arms in 2019-20. He has completed 205 episodes of Rotary Ki Khatti Meethi Baatein. Also, he has played basketball for Gujarat University in the year 1983-84. His hobbies are fellowship, music, outing, reading, and playing cricket. His wife name is Meena Thakkar. She is housewife. He has got 2 daughters, Sonia, who traveled to Mexico, District 1570, as an IYE student in year 2005-6, and younger daughter Bhumi is doing her masters in mental health in New York. Vinodbhai has already inducted approx 80 members to Rotary, and I am one of them, and Deepen. We both inspired by his sharing and his Rotary journey, and we become member of Metro. Thank you. Over to Parimalbhai. હું શ્રી ભરતભાઈ શાહને ને અહીંયા અભિનંદન આપતા સ્વીકારું છું. એમની હાજરીની નોંધ લઉં છું. હવે આપણે વિનોદભાઈને સાંભળ્યા વિના આપણી અધીરાઈ ખૂટે છે. હું વિનોદભાઈને કહીશ કે ક્યાં અટકવું એ મોટો ગુણ છે. એટલે અને જે એ સમજી શકે એ જિંદગી તરી જાય છે. તમને તો હવે આટલા બધા અનુભવથી ખબર જ છે. એટલે આપણે લગભગ એમ માનો ને કે 9:45 સુધીનો ફૂલ ટાઈમ તમને આપીએ છીએ. એટલે બસ તમારે તમે અમારા પર છૂટી જાઓ. વેલકમ વિનોદભાઈ ફોર યોર ટોક. Namaskar, and first of all, thank you very much, Hardik, for those wonderful words. પરિમલભાઈ ઘણી બધી વાતો કરી. મને લાગે છે બધા એકદમ સવારથી પ્રિપેર જ થઈને આવ્યા છે. બધા સવારથી જેને જ્યાં જોક્સ મળ્યા, જ્યાં હાસ્ય વિશેની જે વસ્તુ જાણવા મળી એની ટોટલ થેલીઓ ભરીને આજે આવ્યા છે. બહુ આનંદની વાત છે. આઈ થિંક ગુજરાતમાં તો શું, ઇન્ડિયામાં કદાચ મારા પર્સનલ પૂરી લાઈફની અંદર જેનો સૌથી વધારે
ઇફેક્ટ રહ્યો હોય લાઈફની અંદર હાસ્યની પરિભાષા ઉપર, તો એ સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ છે. સાબુદ્દીનભાઈ વિશે ઘણી બધી વાત કરી તમે પરિમલભાઈ. એમને એક કીધું છે કે ગંભીરતા વગરનું હાસ્ય અને હાસ્ય વગરની ગંભીરતા એ બંને નકામી છે. અને સૌથી મોટી વસ્તુ એમ કહેતા હતા કે સૌથી મોટી સમાજ સેવા શું, તો કે કોઈને નડોમાં. તો મને લાગે કે સોરી, એમ આઈ ઓડિબલ? yes Vinodbhai, please. તો હું આજે જ્યાં આપ સબની સમક્ષ છું, આઈ એમ લિટલ બીટ કન્ફ્યુઝ કે મારે કઈ લેંગ્વેજમાં બોલું, કારણ કે આઈ થિંક ધીસ ઇઝ માય થર્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે હું ગુજરાતમાંથી મુંબઈમાં 35 વર્ષથી આવીને રહ્યો છું, અને એકદમ મિક્સ થોટ્સ કહેવાય ને, કે હિન્દી બી આવે, ઇંગ્લિશ બી આવે, ગુજરાતી બી ઘરમાં આવે. તો પ્લીઝ એક્સક્યુઝ મી ફોર ધેટ. ઇન બિટવીન કદાચ હું લેંગ્વેજની અંદર ક્યાંક ચેન્જ કરીશ જ્યાં હું કम्फर्टेबल होइस. सो मेरी जो भी आज जर्नी है, जहाँ पे मैं हूँ आप सबके सामने 206वां एपिसोड रोटरी की खट्टी मीठी बातों का लेके आया हूँ. मेरी पर्सनल लाइफ की जर्नी, मेरी रोटरी की जर्नी, मैं रोटरी में जहाँ जहाँ पे भी गया हूँ, तो ये सारी जर्नी के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका योगदान है, वो है मेरी पत्नी मीना, जिसकी वजह से मैं आप सबके सामने खुल के बोल सकता हूँ, बिकॉज उसने मुझे कहीं भी जाने से रोका नहीं. तो सबसे बड़ी कम्युनिटी सर्विस उसने की है मेरी लाइफ में, कि शी हैज गिवन मी दैट फ्रीडम, और खास करके जब ये लॉकडाउन आया, शी इज अ हाउसवाइफ, होम मेकर. तो लॉकडाउन में हम सब ने अपने अपने घर में अपना अपना छोटा मोटा काम किया है सब. तो उस लॉकडाउन में जब मैंने 1 साल उसके साथ सबसे ज्यादा पूरी लाइफ का टाइम बिताया है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि being a homemaker is more difficult than being a CEO of the company. So उसके प्रति मेरा जो रिस्पेक्ट है वो 3 गुना ज्यादा हो गया. तो मैं आज जो भी हूँ वो मेरी पत्नी की बदौलत हूँ, और बहुत दिल से बोलता हूँ. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज उसके लिए एक बार ताली बजाए. So first of all, thank you Vatsal for selecting me, to kickstart your year. मैं हमेशा कहता हूँ रोटरी में आप कितने भी साल रह जाओ, अगर आप रोटरी को पूरी समझना चाहते हो तो आपको क्लब प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा. और क्लब प्रेसिडेंट का जो 1 साल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक अलग लेवल पे आपको लेके जाएगा. आपके इंस्टॉलेशन में, मैं पूरे इंस्टॉलेशन में था, और मैंने मेरे 25 साल के रोटरी जर्नी में तकरीबन 550 इंस्टॉलेशन अटेंड किए. तो मुझे सबसे ज्यादा जो ह्यूमर है रोटरी में वो इंस्टॉलेशन में सबसे ज्यादा मिलती है. और हर एक क्लब का अपना कल्चर है. हमारे पूरे विश्व में 200 क्लब, 200 कंट्री में तकरीबन 37,000 क्लब है. हर क्लब का अपना कल्चर है. एंड आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड. आपका जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी मैंने देखा, दैट वाज ऑसम. मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ स्माइल. ऐसा लग रहा था कि एक सेलिब्रेशन है, एक सबके साथ, वो बोलते हैं ना, एक कोई चीज अलग नहीं थी. ऐसा लगता था सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं. सो आई वांट टू शेयर फ्यू थॉट्स ऑन योर इंस्टॉलेशन. सो कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ वंडरफुल इंस्टॉलेशन. कुछ बातें जो मुझे अलग लगी, जो मैं हर जगह पे देखता हूँ. सो सबसे पहले आई वांट टू एक्नॉलेज समवन फ्रॉम योर क्लब, डॉक्टर शशांक. आई थिंक ही इज द फर्स्ट पर्सन whom I knew from your club, because 15-16 साल पहले वो बॉम्बे में आए थे. उनका एक लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो मैंने अटेंड किया था, और उनके प्रोग्राम में से एक स्लाइड अभी भी मैंने रखी है, जो मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज करता हूँ, जो उनको मैंने उनके साथ शेयर भी की उस दिन. सो इट वाज वेरी वेरी नाइस टू सी डॉक्टर शशांक. ही इज एन अमेजिंग रोटेरियन. सो कुछ बातें जो मुझे अलग लगी, आपका जो इंस्टॉलेशन था उसमें डायस के ऊपर जो लोग बैठे थे इंस्टॉलेशन के पहले, वो आउटगोइंग टीम थी, और इंस्टॉलेशन के बाद में आपने इनकमिंग टीम को ऊपर बिठाया. हमारे वहाँ ज्यादा करके जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों एक ही साथ में बैठते हैं पूरे इंस्टॉलेशन के दौरान, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तब तक वो वहां पे बैठते हैं. तो दिस वाज अ न्यू थिंग व्हिच आई फाउंड इन क्लब. तो उसमें अच्छी बात मुझे ये लगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत सारा सटायर मारता था कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट के लिए लास्ट मीटिंग होती है.
तो इंस्टॉलेशन के दो पहलू, एक इंटरवल के पहले, एक इंटरवल के बाद में। तो इंटरवल के पहले जो है वो एनर्जी पूरी आउटगोइंग प्रेसिडेंट के पास है। ऑडियंस का पूरा फोकस आउटगोइंग प्रेसिडेंट के ऊपर है, क्योंकि आउटगोइंग प्रेसिडेंट आके अपने साल में क्या क्या उन्होंने किया उसके बारे में बात करता है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो जितना भी एक साल में किया है उसको वो शेयर करता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, थैंक्स बोलता है लोगों को, एंड देन इंस्टॉलेशन होता है। और जैसे इंस्टॉलेशन होता है उसके बाद पूरा जो फोकस है ऑडियंस का वो इनकमिंग प्रेसिडेंट के ऊपर, बिकॉज शादी तो उसकी है, जो होना था वो हो गया, अब जो होने वाला है उसके ऊपर लोग देख रहे हैं। सो व्हाट आई ऑब्जर्व वाज, क्योंकि वो डायस के ऊपर आउटगोइंग टीम पहले बैठती है, इनकमिंग बाद में आती है, तो लोगों को वो एक्सप्रेशन दोनों का एक साथ में देखने को नहीं मिला। हमारे वहाँ ऐसा होता है, शायद मेहुल भाई ने काफी जगह पे देखा होगा, अगर बॉम्बे वो साइड में दूसरे इंस्टॉलेशन में। सो जब आउटगोइंग प्रेसिडेंट बात करके डायस पे आता है, इंस्टॉलेशन हो गया, एंड नाउ इनकमिंग प्रेसिडेंट इज गोइंग टू द पोडियम। जस्ट इमेजिन कि वो डायस के ऊपर बाद में क्या होता है। वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट जाके डायस पे बैठता है, अब वो बंदा खाली हो गया, जो उसको जो बोलना था, साल पूरा हो गया, नाउ इज कंप्लीटली, उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। वो जाके ऐसे डायस पे बैठता है, एंड सडनली ऑडियंस पूरा इनकमिंग प्रेसिडेंट को सुन रहा है, एंड नाउ ही इज लुकिंग एट द ऑडियंस एंड नोबडी इज लुकिंग एट हिम। उसको ऐसा लगता है क्या हो गया, मतलब जैसा लगा कि पावर पूरा निकल गया एक ही दिन के अंदर। सी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ये सारे हम सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो होता है कि वो ऐसे चुपचाप बैठ के ऑडियंस को देखता है, यहाँ पे इनकमिंग प्रेसिडेंट अपने प्लान अनवील कर रहा है, अब उसके पास कुछ काम है नहीं, तो चीफ गेस्ट बाजू में बैठे गवर्नर है या इनकमिंग गवर्नर, ये उनके साथ में डिस्कशन चालू हो जाता है। सर मैंने तो फाउंडेशन में इतना दिया, अब वो गवर्नर को इसके कुछ लेना देना नहीं, बोले तू तो गुजरा हुआ कल है, मेरा प्रेसिडेंट को मेरे को सुनना है। तो गवर्नर भी ज्यादा उनके साथ में, he doesn't give that ear, you know। तो ये बैठे बैठे मेंबरशिप का कुछ है, तो सामने कुछ पड़ा है, वो इधर उधर करके देख रहा है, एंड सडनली जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है वो अनाउंस करता है, टुडे वी आर गोइंग टू इंडक्ट 6 न्यू मेंबर, यू नो। अब ये बंदा उसके इंस्टॉलेशन में चला जाता है उधर बैठ के, कि मेरे इंस्टॉलेशन में कितने इंडक्शन हुए थे। अगर उसके इंस्टॉलेशन में 3 हुए तो फिर उसको जलन होती है कि मेरे इंस्टॉलेशन से इंस्टॉलेशन ज्यादा अच्छा है। एंड ही आल्सो लुक एट द ऑडियंस कि मेरे इंस्टॉलेशन में कितने लोग आए थे, यू नो, दैट कंपैरिजन स्टार्ट। सो ये छोटी छोटी घटना, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, बिकॉज आप तो आउटगोइंग बैठा, नीचे आ गया आउटगोइंग प्रेसिडेंट, तो ऑडियंस को फिर अगेन यू नो न्यू एनर्जी और इनकमिंग प्रेसिडेंट को देखने का मिला। So what I observe in your installation was very you know enlightening, you know। कुछ बातें जो हमेशा रोटरी में आपको देखने को मिलेगी, you know, जैसे चीफ गेस्ट है, your past governor विनोद भाटिया was there। So ये मैंने देखा है कि चीफ गेस्ट कोई भी आता है वो हमेशा वो क्लब के जितने भी लोगों के साथ में उनके कनेक्शन है, his opening remark starts with that, you know, taking the name of that individual। अब उसका रीजन ये है कि जितने लोगों का नाम वो चीफ गेस्ट लेंगे ना, वो सारे लोग अटेंटिव बन जाते हैं। दे विल लिसन टू द चीफ गेस्ट वेरी वेरी सिंसियरली, बिकॉज आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है अच्छे स्पीकर के अंदर, अच्छे यू नो रोटेरियन के अंदर। और मैंने देखा कि उन्होंने सबका रिकॉग्निशन किया। जो पास गवर्नर थे उन्होंने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से लेके डीजीएन से लेके आपके इनकमिंग प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि जेपी और मौलिक पास गवर्नर, उनकी मेहसाना और पाटन की ब्लड बैंक की बात की। और एक चीज हमेशा आता है, जब भी कोई पास गवर्नर आपके इंस्टॉलेशन में या कहाँ पे भी चीफ गेस्ट करके आएंगे, उनके मुंह से एक बात तो ये निकलेगा कि व्हेन ही वाज गवर्नर व्हाट ही डिड, एंड वो सब करके वहां से उन्होंने बोला कि व्हेन आई वाज गवर्नर, यू नो, टेकिंग द इनिशिएटिव फ्रॉम मेहसाना एंड पाटन, वी did the blood donation you know drive and one hospital in Jodhpur। So it was very nice to you know see these are all learning, and I always observe this thing। Another thing which I loved about was your master of ceremony, Kalpesh bhai। I think he is an amazing, मुझे लगा कि ये तो बंदा मेरे से भी आगे रोटरी की खट्टी मिट्टी चालू करेगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकता है। What a man यार, क्या एक एक बात उन्होंने सुनाई, and I was thrilled to listen that haiku, you know। And then he also brought that football and you know your tennis, and what a comparison, amazing, you know। And he also gave some wonderful thought, like there are 2 kinds of people,
one who remembers the name, and one whose name is remembered. You know, that was a wonderful thing. And then what I was amazed was your immediate past president, Arpit Bhai. I think I have in 550 installation में ये सबसे शॉर्ट प्रेजेंटेशन था कोई आउटगोइंग प्रेसिडेंट का, जिसने कुछ बोला ही नहीं. मतलब इतना ही बोला कि भाई मैं आपको विशेष देता हूं कि वत्सल भाई के साल में जूम मीटिंग नहीं हो. आई डोंट नो why he didn't share about, maybe आपका कोई शुक्रिया कुछ एडवांस में हो गया, या उनका पूरा ट्रैवल बिजनेस की वाट लग गई, जैसा उन्होंने कहा जूम में, तो वो मूड में नहीं थे. या कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट का जो पावर है ना, अगर आपका इंस्टॉलेशन 1 जुलाई के पहले होता है, मेरी क्लब का इंस्टॉलेशन 27 जून को हुआ, हमारे वहां जून 15 से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाते हैं. जो क्लब का इंस्टॉलेशन 1 जुलाई के पहले होता है, क्योंकि तभी वो खुद प्रेसिडेंट है, तो वो पावर है उसके अंदर. तो जब बात करता है ना, वो उसके अंदर उसके टोन के अंदर निकल के आता है. वो उतना तभी वो दिमाग में सब चीज रहता भी है, क्योंकि अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है. तो मुझे लगता है वो आपका हैंड ओवर हो गया और 10 दिन निकल गया, तो ये तो अच्छा था. जूम में आपको मिल गए अर्पित भाई, लेकिन मैंने कहाँ ऐसा भी देखा है कि अगर 30 जुलाई के आसपास इंस्टॉलेशन है, तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट को ढूंढना पड़ता है टाइम लेके कि भाई इंस्टॉलेशन के दिन आना तू, नहीं तो वो कुछ काम में निकल जाता है. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आज की मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में IPP इज देयर, so that shows his commitment towards your club. So that was one thing which I observed. I also observe your incoming. अच्छा, वो अर्पित भाई वापिस गुजराती में बोलते बोलते एक जगह पे अटक भी गए, कुछ वर्ड उनको नहीं मिल रहा था, फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट किया, तभी जाके वो वर्ड मिला. He took a pause, थोड़े टाइम के लिए, वो भी देखा मैंने. And then your incoming president, I think what's his name, Atul bhai, he came and he shared the 4-way test. I think incoming president elect के लिए शायद ये सबसे बड़ा इवेंट पहला होगा कि इतने ऑडियंस के सामने बात करने के लिए. तो he was little bit वो थोड़ा उनके पांव थर रहे थे, इसलिए उन्होंने 4-way टेस्ट में भी जो सेकंड था वही वापस 4 में भी बोला, इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न. वापस लास्ट भी इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न नहीं बोला, बेनिफिशियल निकल गया उनसे. So I think these are small observation I do, and from where we get lot of laughter. शशांक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग को रोटरी में प्रेसिडेंट, गवर्नर, RI प्रेसिडेंट पोस्ट मिलती है. So there are 2 kinds of Rotarian. Most of them dignify the post. Most of them dignify the post, but very few give dignity to the post. So I think that's a wonderful thought. और ये जो थॉट है ना, वो आपको, I always say this कि हम लोग बोलते हैं ना, किसी को आप पूछो कि रोटरी में कितने मेंबर है, रोटेरियन है, तो हमेशा बोलेंगे 1.2 मिलियन. बट आई थिंक 1.2 मिलियन है वो मेंबर है, दे आर नॉट रोटेरियन. रोटेरियन बनने के लिए ये जो वर्ड है ना, वही फर्क है. जो रोटेरियन है, they give dignity to the post. They don't dignify. So there is a difference between being a member and being a Rotarian. So what am I going to do? I want all of you to relax. मेरी लाइफ के 2 फंडा है. Don't be serious in life. हमारी जो इंग्लिश एंड जो हिंदी या जो हमारी गुजराती की जो ट्रांसलेशन है ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है. हम बोलते हैं गंभीर, तो गंभीर doesn't mean serious. गंभीर means sincere. ये बहुत बड़ा फर्क है. सीरियसनेस ब्रिंग्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी. अभी अगर मुझे आपको लाफ्टर के ऊपर खट्टी मीठी बात करनी और मैं एकदम सीरियस मुंह बना के आपसे बात करूंगा, तो नोबडी विल लिसन. ये 5-10 मिनट के अंदर सारे वीडियो ऑफ हो जाए. सो नेवर बी सीरियस इन लाइफ और इन रोटरी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. रिलैक्स. आई थिंक रोटरी में इतनी सारी बातें हैं जहां पे आप हंस सकते. मैंने 25-26 साल में रोटरी को कैसे देखा है. And the good part is, right from new member to all the avenues in district, I have been at international lot of programs being part of. So I have seen Rotary every year differently. So I am going to share with you कुछ बातें एक्चुअल है, कुछ बातें काल्पनिक है.
मैंने बनाई है ताकि आई कैन ब्रिंग दैट मैसेज एंड ब्रिंग दैट ह्यूमर इन दैट. यू विल लव इट. एंड जब आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे हाँ यार हमारे क्लब में भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है. और सबसे ज्यादा जो मैंने बोला कि ह्यूमर है वो इंसुलेशन में आती है. मैंने देखा अभी धीरे धीरे फ्लावर निकल गए. सबसे पहले हमेशा मैं देखता था कि एजेंडा बनता था सेक्रेटरी जब मैं था क्लब में तो पहले आता था मीटिंग कॉल टू ऑर्डर एंड देन फ्लोरल वेलकम. अब ये फ्लोरल वेलकम निकल गया. मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने जो फ्लावर है ना उससे अच्छी चीज दुनिया में कोई नहीं है किसी को प्रेम दिखाने की. आप किसी को एक फ्लोरल रिकॉग्निशन फ्लावर दे दो साहब, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत है, इतना प्रेम है. तो मैंने बहुत नजदीक से ऑब्जर्वेशन किया कि फ्लावर का इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई पीपल गिव फ्लावर. आपका इंस्टॉलेशन था, आई डोंट नो, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. आपके वहाँ फ्लोरल रिकॉग्निशन हुआ कि नहीं? अदरवाइज हम इंस्टॉलेशन है, बड़े जो इवेंट है उसके अंदर पहले चीफ गेस्ट से स्टार्ट करके वी गिव फ्लोरल रिकॉग्निशन टू डिस्ट्रिक्ट पीपल. देन अपने फैमिली में कुछ प्रेसिडेंट क्या आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं. आई डोंट नो मेहुल भाई आपके वहाँ प्रीपेड्स वगैरह का कंसेप्ट है? प्रीपेड्स होता है ना? होता है. So prepaid is one of the finest thing. I'm sure Vatsal also have been to prepaid. तो prepaid में क्या होता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट के हर एक क्लब के प्रेसिडेंट अपने स्पाउस के साथ 2-3 दिन का प्रोग्राम रहता है, ट्रेनिंग होता है, फेलोशिप होता है, आपका ग्रुप होता है, कंपटीशन होता है. तो वहां पे एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है. एंड जितने जो 8-10 प्रेसिडेंट के क्लोज रिलेशनशिप होती है वो एक दूसरे को कमिट करते हैं कि यू हैव टू कम टू, वी विल गो टू एवरीबॉडीज इंस्टॉलेशन सेरेमनी. तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन ऐसा है सर कि ऐसे बड़े इवेंट के अंदर जिनको फ्लावर आप देते हैं, अभी आपका भी डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, कभी आपके इंस्टॉलेशन में कलोल से, कड़ी से, कहाँ से प्रेसिडेंट आते हैं, 1-2 घंटे का ट्रैवल करके आते हैं. तो जब इतने क्राउड के बीच में प्रेसिडेंट उस बैचमेट को वत्सल बोलता है कि ऑल द वे माय बैचमेट ऑल द वे कमिंग फ्रॉम कलोल, आई वांट टू रिकॉग्नाइज हिम विद द फ्लावर. अब जब वो बंदे को फ्लावर मिलता है ना साहब, वो 1.5-2 घंटे का थकान वो सेकंड में निकल जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है. ह्यूमन नीड, वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन नीड इज नॉट मनी, इट इज रिकॉग्निशन, इट इज एक्नॉलेजमेंट. सो व्हाट आई फाउंड इज कि ऐसे बड़े इवेंट के अंदर आप जिन लोगों को एक्नॉलेज करते हो, जिनको फ्लावर देते हो ना, वो सारे लोग वत्सल पूरा इंस्टॉलेशन कुर्सी पे चिपक के बैठते हैं. एंड दे आर द मोस्ट अटेंटिव पीपल. टिल वोट ऑफ थैंक्स वो लोग किधर जाते नहीं. और इसके साथ ये भी होता है, हम इतना बड़ा इवेंट करते हैं तो कोई ना कोई तो छूटना ही है. तो मेरे साथ एक्चुअली इंसिडेंट हुआ था 2007-8 में. मैं कोई डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा चेयर था और मेरे साथ में चीफ कोऑर्डिनेटर इज अ राइट हैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर. अब हम लोग पहुंचे उस क्लब में और इंस्टॉलेशन के पहले पहुंचे, हम प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंट को मिले एंड देन इंस्टॉलेशन स्टार्टेड. हम लोग फ्रंट रो में बैठे हैं. अब इंस्टॉलेशन में सारे लोगों का रिकॉग्निशन हो गया, मुझे भी फ्लावर मिला और मेरे बाजू में जो चीफ कोऑर्डिनेटर बैठे थे, पता नहीं क्या प्रोग्राम आगे चलने लगा और वो मिस हो गया. अब किसको फ्लावर नहीं मिलेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके कान बंद हो जाएंगे, उसका लिसनिंग स्टॉप हो जाएगा. His internal dialogue starts, अरे यार पूरे गांव को फ्लावर दिया, मेरे को फ्लावर नहीं दिया. And this guy is sitting in the front row, he is looking at the president, और वो कुर्सी पे बैठ के पांव इधर उधर करके उसको he is trying to take the attention के भाई मैं रह गया हूँ. अच्छा मेरा नेचर ऐसा, मैंने देख लिया तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला यार शशि तेरे को फ्लावर नहीं मिला. तो अभी उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज अब तक तो उसको अकेले को मालूम था, अब मुझे भी मालूम पड़ गया कि उसको फ्लावर नहीं मिला. एक ऐसा होता है कि हमारे घर में अचानक रात को 12 बजे लाइट जाती है तो पत्नी उठाती है कि भाई देखो बिल्डिंग में सबकी लाइट गई क्या. अगर सबकी लाइट गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाओ, लेकिन अगर आपकी अकेले की लाइट गई तो बहुत प्रॉब्लम है. तो इसके साथ भी ऐसा हो गया. तो मैंने एक चिट्ठी भेजा प्रेसिडेंट को और जैसा प्रेसिडेंट के हाथ में चिट्ठी आया, प्रेसिडेंट भी थोड़ा टेंशन में आ गया, चीफ कोऑर्डिनेटर कैसे मिस हो गया. उसने तुरंत बीच में से प्रोग्राम रोक के माइक लेके माय सिंसियर एपोलॉजी ऐसा करके उसको फ्लावर दिया. और मेहुल में जैसा फ्लावर मिला ना साहब, वो पलाटी मार के जो बैठा ना, वोट ऑफ थैंक्स तक उसका पलाटी भी इधर उधर नहीं. सो दैट इज द पावर ऑफ फ्लावर.
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग ये टेक्नोलॉजी के जमाने में इस चीज को मिस कर रहे हैं। अब ऑनलाइन भी ये चीज हो रही है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि प्रोग्राम शुरू होता है तो सार्जेंट को बोला जाता है कि सार्जेंट कम्युनिकेशन में भेजता है, इफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड द प्रोग्राम प्लीज सेंड ऑन चैट बॉक्स दैट यू आर देयर सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज यू। अब मैं ऑनलाइन भी देखता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम में जहाँ पे 40, 50, 60 लोग हैं, वहां तो आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन जहाँ 300 लोग हैं उसमें बंदा एक बार डालता है आई एम विनोद ठक्कर फ्रॉम रोटरी क्लब मुंबई दहीसर, ऐसा करके गुड इवनिंग डाल देता है, तो उसका रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो थोड़े टाइम के बाद वो वापस डालता है कि भाई मैं रह गया हूँ। अब 2 बार डालने के बाद भी रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो या तो वो छोड़ देता है या अपना वीडियो बंद करके बैठ जाता है। So this is happening online also because we all are human beings. चाहे फ्लावर हो या एक्नॉलेजमेंट ऑनलाइन हो, लेकिन you need that. रोटरी की सबसे अच्छी बात यह है कि हम रोटरी में हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कभी रोटरी में किसी ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी कोई प्रोग्राम में, तो गवर्नर ने आके कभी कोई प्रेसिडेंट ने ओसीबी में अगर कुछ काम भी नहीं किया है, तो आई हैव नॉट सीन एनी गवर्नर की ओपनली मीटिंग में बोलेगा कि अरे वत्सल आपने तो स्टार्टिंग में बोला था 50 मेंबर लाएंगे, आपका ओसीबी आ गया, आप एक भी मेंबर नहीं लेके आए, ऊपर से आपके 4 मेंबर निकल गए। अगर ऐसा हुआ भी है ना, तो मैंने कभी कोई गवर्नर को ऐसे ओपनली क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ रोटरी। देयर इज अ वे रोटरी टीच अस टू से, वो हमेशा ऐसा बोलेगा कि वत्सल आई हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड, आई कैन अंडरस्टैंड द वे लॉकडाउन हैज impacted the life of people. I think now president, your priority is the health of your member, not bringing new member, but I am sure end of your tenure you are going to make it, and you are going to give your best shot. ऐसा करके वो पॉजिटिव बात करके गवर्नर छोड़ता है, वो कभी कंप्लीट आपको क्रिटिसाइज नहीं करता है। So I think that's the beauty of Rotary. रोटरी में हमको हर साल कुछ ना कुछ करने का मौका मिलता है। अभी जैसे इनिशियल हमने देखा एक प्रेयर बोली भावना जी ने, तो लाइफ में है ना, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, वन हु इज रिएक्टिव एंड वन हु इज रिस्पॉन्सिव। उसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप अगर सोडा की बोतल खोलेंगे तो बाहर निकलता है पानी फटाक से, सो दैट इज रिएक्शन। बट आप पानी की बोतल को भी हिला के खोलेंगे तो देयर इज नो रिएक्शन, इट्स अ रिस्पॉन्स। दोनों लिक्विड फॉर्म में है, वैसे इंसान भी ऐसे होते हैं। तो एक इंसुलेशन में ऐसा हो गया कि इंसुलेशन में इनवोकेशन होता है हमेशा, तो इनवोकेशन के लिए ज्यादा करके फैमिली के लोग आते हैं, कोई प्रोफेशनल तो आते नहीं है। सो एक लेडी आके इनवोकेशन स्टार्ट किया उन्होंने, एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे इनवोकेशन स्टार्ट हुआ, उनकी आवाज थोड़ी भारी भरकम थी। ये मेरे बाजू में जो बंदा बैठा था रोटेरियन, ही वाज अ रिएक्टिव, तो उससे रहा नहीं गया, एंड ही इमीडिएटली स्पेल्ड आउट व्हाट अ हॉरिबल वॉइस यार। और सबने सुना एकदम, एंड आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। इनवोकेशन चालू है, ये बंदे से अभी भी रहा नहीं गया, मेरे को पूछता है विनोद हु इज शी। तो मैंने बोला यार मैं एक क्लब में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, आपके बाजू में जो बंदा बैठा है ना, उसकी बाजू वाला मैं जब भी आया तभी बैनर लगा रहा था, शायद वो लोकल रोटेरियन हो सकता है। इससे रहा नहीं गया, उसने सुना इसने क्या बोला, इनवोकेशन चालू है, बाजू वाले को ऐसा बोलता है, उसको पूछता है हु इज शी, वहां से आवाज आता है शी इज माय वाइफ यार। अबे बंदा तो रिएक्टिव है, उसने तुरंत पलटी मारा। व्हाट अ वॉइस बोलता है, फैंटास्टिक वॉइस बोलता है, ब्यूटीफुल थ्रोट बोलता है। द प्रॉब्लम इज लिरिक्स बोलता है, होपलेस लिरिक्स बोलता है। मैं बोला यार बचा दिया, इधर रोटरी में झगड़ा हो जाता था। इनवोकेशन चालू है, वो बंदा भी चुप हो गया। इनवोकेशन खत्म हुआ, प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया गवर्नर को कि प्लीज रिकॉग्नाइज द लेडी फॉर अ वंडरफुल इनवोकेशन। एंड बाय द टाइम दैट लेडी कम्स, प्रेसिडेंट को अचानक क्या याद आया, उसने वापस माइक लेके बोला फ्रेंड्स दो शी sang very nicely, but let me tell you the secret, and the secret is the lyrics which is written by none other than her husband. अब वो बंदा वहां पे आता है, तब तक ये वहां से निकल गया सब। मैं बोला अभी तो पक्का झगड़ा होता है यहाँ पे। तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती है, हम लोग क्या है उसको थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं। सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इसको लाफ इट आउट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी फ्रेश। मैंने एक दूसरी चीज भी गौर की, आपने भी गौर की होगी, हर एक इंसान का एक एक फिक्स आइडेंटिटी हो जाता है। जैसे उस दिन मैं सुन रहा था कि मेहुल भाई जब बात कर रहे थे
तो बॉलीवुड का एक सॉन्ग आया और मुझे लगा कि वो उनकी स्पेशलिटी कि ही विल ऑलवेज ब्रिंग बॉलीवुड इन हिज टॉक। वैसे हमारे आरआई डायरेक्टर है भरत पंड्या, आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने उनको सुना होगा। Whenever he speaks, he will always bring quotation from the past leader, वो फ्रैंकलिन की बात करेंगे, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, कोई बड़े ओलंपिक में से किसी के कोटेशन लेके आएंगे। ही इज एन अमेजिंग स्पीकर। अब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि 2001-2 में मैंने एक स्किट की थी। मेरा एक मित्र है प्रफुल्ल शर्मा, जो कि पास गवर्नर है, मौलिक भाई के बैचमेट है, ही इज अ गुड राइटर। उन्होंने एक स्किट में मुझे एक रोल दिया था। रोटरी में ये सारी चीज हम जो छोड़ के आए ना, पीछे करने का मौका मिलता है। रोटरी ब्रिंग योर बेस्ट आउट ऑफ यू। सो मेरा एक सिंधी का कैरेक्टर था, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ, यहाँ बॉम्बे में सारे बड़े बड़े सिंधी लोगों से कनेक्शन है, तो कुछ बात करने का तरीका मुझे आ गया था। वो स्किट इतनी हिट हो गई कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2-3 बार उसका रिपीटेशन हुआ, और उल्लासनगर के सिंधी लोग आके मुझे बोलते थे, यार विनोद भाई तुम तो पक्का सिंधी है यार। उनको ऐसा लगता था मैं सिंधी में बात करता हूँ तो सिंधी लगा। मैं बोला ऐसा नहीं यार, मैं गुजराती हूँ। अब मैं उस चीज को भूल गया। पता नहीं मेरे बारे में लोगों ने क्या फिक्स आइडेंटिटी की। 5-6 साल के बाद एक मेरे मित्र साजिद मूलचंदानी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, और ये मेरे सारे एपिसोड में इंसिडेंट्स, एक्चुअल इंसिडेंट्स से मैं शेयर करता हूँ, उस बहाने मैं उसको याद करता हूँ साजन को। संडे को सुबह में 8:30 बजे मुझे फोन आता है। मैंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, अरे विनोद भाई, गुड मॉर्निंग भाई। अरे यार साजन भाई, केड़ो वाला साईं यार, कैसा है भाई? अरे यार तुम मेरा आवाज पहचानता है यार? अरे बाबा, ट्रू कॉलर में चढ़िया तेरा नाम तो आएगा ना। अच्छा यार, एक काम करो, तुम 11:30 बजे बराबर उल्लासनगर में पहुंचो। मैं बोला क्या है यार साजन भाई, क्या प्रोग्राम है? अरे यार मैंने पूरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट का राय ला रखा है, हम पूरा ऑडिटोरियम बुक किया है, 400-450 स्टूडेंट है। मैं तो खुश हो गया, उस जमाने में मुझे कोई इतना जानता नहीं था स्पीकर करके। मैं बोला यार 450 स्टूडेंट के बीच में बात करने का मौका, मजा आ जाएगा। अब बोरीवली से उल्लासनगर लंबा है, तो मैंने सोचा इतना बड़ा इवेंट है, कोई वेस्टर्न सबब से मेरे नजदीक से कोई दूसरा स्पीकर है तो पूछता हूँ, तो साथ में चले जाएंगे। तो मैंने पूछा साजन भाई, अच्छा साजन भाई यार मेरे को बताओ, कोई दूसरा स्पीकर हमारा वेस्टर्न सबब से है क्या, मैं साथ में आऊं क्या? अरे यार तुम दूसरा स्पीकर को गोली मारो ना, 11:30 बजे पहुंचो ना यार। मैंने सोचा यार इसको ज्यादा पुश करूंगा, ये कैंसिल कर डालेगा, अपना अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। अच्छा ठीक है यार साजन भाई, मैं पहुंचता है 11:30 बजे, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या है अपन रोटरी में तो कभी भी कुछ भी जाके बात कर सकता है, बच्चों के सामने बात करना है, थोड़ा प्रिपरेशन करेगा ना, तो मेरे को क्या टॉपिक पे बात करने का है? देखो यार विनोद भाई, ऐसा तो पूरा प्रोग्राम सेट है यार, मेरे पास क्या है, बीच में 11:30 से 11:45 15 मिनट का टाइम है। मैं चाहता है आप आके थोड़ा मिमिक्री करो ना यार। अब उसको लगा कि विनोद ठक्कर मिमिक्री कर सकता है, तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग, पता नहीं वत्सल ने आप लोगों को क्या मैसेज में डाला कि विनोद भाई खट्टी मीठी बातें, कभी कभी लोग क्लब में जाके, मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम जाता हूँ तो भी लोग हंसना चालू कर देते हैं। पर पत्नी की बात करूं, मैं प्रीपेड्स की बात करूं, हर एक क्लब के, आपके अभी 26 साल हो गया क्लब में, आगे की लीडरशिप, उस दिन शशांक भाई ने बोला कि सेकंड ब्रिगेड तैयार हो गया है, एंड यंग लीडरशिप इज कमिंग। So I think one of the most challenging time in Rotary today, apart from the membership, is leadership. और जो जूने क्लब है जिसका 25 साल 30 साल हो गया है, वहां पे अगर उन्होंने यंग मेंबर को नहीं लिया है तो ज्यादा पास्ट प्रेसिडेंट हो जाते हैं, लास्ट वन में कोई प्रेसिडेंट निकल जाता है। तो ये 22-25 साल पहले की एक्चुअल बात कर रहा हूं मैं। उस जमाने में मुंबई के अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड था। एक क्लब में ऐसा हुआ कि प्रीपेड्स के बिल्कुल 10 दिन पहले जो प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंट था, उसने किसी भी वजह से ना बोल दिया। क्लब में क्राइसिस हो गया, 10 दिन है, प्रीपेड्स में प्रेसिडेंट को भेजना है, तो तभी है ना पास्ट प्रेसिडेंट की वैल्यू ऐसी क्राइसिस के टाइम पे क्लब में मालूम पड़ती है। तो प्रेसिडेंट ने सारे पास्ट प्रेसिडेंट का मीटिंग बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वी नीड टू फाइनलाइज द प्रेसिडेंट। फिर रोस्टर लेके बैठ गए, एक एक का नाम दे रहे, अरे इसका तो सेमिनल टाइम पे नहीं आता है, अरे इसने तो कभी सेक्रेटरी नहीं किया है, अरे ये तो मीटिंग में नहीं आता है। करते 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 एक रमेश पटेल का नाम आया, तो बोले अरे रमेश पटेल है ना,
वो 10 साल से रोटरी में, हालांकि सेक्रेटरी नहीं बनाए, लेकिन फेलोशिप अच्छा है। कोई भी स्पीकर आता है तो अपना मीटिंग के बाद में एक्सटेंडेड पार्टी में वो हमेशा जाता है, फेलोशिप में अच्छा है, पिकनिक में आता है, फाउंडेशन में कभी दे देता है। और सबसे अच्छी बात है कि उसका क्लब में किसी के साथ पंगा नहीं है। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट टू बिकम द प्रेसिडेंट। तो 3-4-5 प्रेसिडेंट मिलके प्रेसिडेंट के साथ उसके घर पे चले गए, उसको समझा रहे कि देखो यार, अपनी क्लब 30 साल पुरानी है, रमेश भाई आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो रमेश भाई मेरे जैसा गुजराती बोले यार वो सब ठीक है, पैसा वैसा लेके जाओ, मेरे को इंग्लिश बात करने को नहीं आता है, मीटिंग कैसा कंडक्ट करने का, कम्युनिकेशन कैसा करने का, तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो एक पास प्रेसिडेंट बोलता है, अरे साउथ इंडियन बोलता है विनोद भाई, अरे रमेश भाई डोंट वरी, बोलता है आपका कम्युनिकेशन लेटर बेटर सब मैं करेगा, आप खाली वेडनेसडे आ जाओ 8 बजे, मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करो, बाकी सब मैं संभाल लेगा। उसकी वाइफ को पूछ किया और रमेश भाई को तैयार किया, और ये रमेश भाई तैयार होके प्रीपेड्स में। अभी देखो रमेश भाई पहले रोटरी में है 10 साल से, लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है, ये बंदे को रोटरी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, अपने क्लब के बाहर कभी गया नहीं। तो रेगुलर मीटिंग के बाद वो एक्सटेंडेड फेलोशिप में उसको मजा आता था, ड्रिंक विंक करने का, 3-4 पैक मारने का, और बाद में अपना खुद का गाड़ी लेके ये बंदा रात को 12 बजे घर पे आ रहा है। रोटरी में है, देखो प्रेसिडेंट में जाने से पहले क्या एटीट्यूड है उसका। 12 बजे आ रहा है, वो बिल्डिंग का गेट बंद है और जोर जोर से हॉर्न मार रहा है। रोटरी में हॉर्न मार रहा है तो आजू बाजू के बिल्डिंग वाले को पता चलता है कि बुधवार है, रमेश भाई आ गए भाई गेट के ऊपर। वो वॉचमैन किधर से भी भागते भागते आता है, गेट खोलता है, जैसे गेट खोलता है ग्लास नीचे उतर के उसको गाली सुनाता है। ये रमेश भाई का एटीट्यूड। दो ही वाज इन रोटरी। बिल्डिंग में जाते हैं, लिफ्ट के अंदर तो एक लिफ्टमैन बैठा रहता है स्टूल के ऊपर, उसके ऊपर भी भड़क जाते हैं, बोले अरे स्टूल का को अंदर रखा है, बाहर निकालो, 2 आदमी का जगह रोकता है। बम्बई में मालूम नहीं स्क्वायर फीट का रेट क्या है। दिस वाज हिज एटीट्यूड, दो ही वाज अ रोटेरियन। पत्नी ने एक बार पूछ लिया रमेश भाई को कि अपनी भाई के बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए 5,000 रुपया चाहिए, तो उसके ऊपर भी भड़कता है, बोले भाई के रखी कितना टाइम हुआ, बोले 3 महीना, बोले भाग गई तो। दो ही वाज अ रोटेरियन फॉर 10 years। अब ये रमेश भाई को क्लब में क्राइसिस आया तो उसको भेजा प्रीपेड्स। प्रीपेड्स में क्या होता है, इतने सारे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनर आते हैं, 2 दिन फेलोशिप होती है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है, और ट्रेनिंग आपकी मेंबरशिप है, फाउंडेशन है, कम्युनिटी सर्विस, वोकेशनल, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, रमेश पोलियो प्लस। रमेश भाई का 2 दिन में माथा पूरा चक्कर में आ गया, बोले आज शू है, आ रोटरी से, मैंने खबर नहीं रोटरी शू। तो ये आदमी वहां से वापस आता है और वहां पे दूसरे बड़े बड़े क्लब के प्रेसिडेंट की शेयरिंग सुनता है, मेरे क्लब ने ये प्रोजेक्ट किया, उसने ये किया, इतना फाउंडेशन में दिया। ये आदमी पूरा एकदम उसका दिमाग घूम गया। आने के बाद अब वापिस रोटरी की मीटिंग में जाता है। अभी देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है प्रेसिडेंटशिप होने के बाद में। ये बंदा वापिस रोटरी में जाता है, फिर फेलोशिप में जाता है, वही रमेश भाई, वही 4 पैक मारने के बाद वही गाड़ी में, वही स्टीयरिंग में बैठ के गाड़ी ड्राइव करके घर पे आता है। जैसा वो हॉर्न मारने को जा रहा है ना, वो रुक जाता है प्रेसिडेंट है अभी, उसको ग्लोबल वार्मिंग का सेशन याद आ जाता है, बोलता है नो हॉन्किंग। आदमी एकदम चुपचाप बैठ जाता है और वो लाइट से है ना डीपर ऐसा ऐसा करता है। आप वत्सल आपकी प्रेसिडेंटशिप में है ना, दूसरा प्रोजेक्ट प्रोग्राम कुछ भी करना, लेकिन 2 वैल्यू आप सीखेंगे एंड ऑफ योर ईयर, एंड दैट इज टॉलरेंस एंड पेशेंस। ये चीज प्रेसिडेंट में बहुत आ जाएगी, और अगर ये जो इंसान अपनी लाइफ में सीख लेता है, उसको लाइफ में सक्सेस होने में किधर भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डीपर मार रहा है, वो अचानक वो वॉचमैन देखता है लाइट कौन मार रहा है, बोले अरे ये तो रमेश भाई। उसको लगा ये आदमी हॉर्न नहीं मार रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। वो भागते भागते आता है, गेट खोलता है, अब देखता है कि रमेश भाई ने ग्लास नीचे नहीं उतारा, अपना गाड़ी सीधा लेके पार्किंग की तरफ लेके जा। अब वॉचमैन को ये टेंशन हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, आज ये बंदा कुछ अलग बिहेव कर रहा है। उसको पता नहीं कि ये बंदा प्रेसिडेंट बन गया। पार्किंग में गाड़ी छोड़ के वो एंट्रेंस लॉबी की तरफ आ रहा है, और ये बंदा एंट्रेंस लॉबी पे खड़ा है। उसको लगा ये मारेगा पक्का, और ऐसा रमेश भाई हाथ ऊपर करता है तो वो ऐसा कर रहा है, और रमेश भाई आराम से उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। एंड दैट मोमेंट वाज अ डिफरेंट मोमेंट फॉर दैट वॉचमैन। वॉचमैन बोलता है साहब क्या हुआ, बोले अरे राम सिंह तुम किधर थे, बोले साहब पानी चढ़ाने को गया था। अब उसने वहां पे 20 मिनट का वाटर मैनेजमेंट का एक सेशन सुन लिया था प्रीपेड्स में, कि दुनिया में कितने टाइप के पानी है, पीने लायक पानी कितना है, इंडस्ट्रियल वाटर कितना है, उसकी पीएच कितनी होती है, और पानी की कितनी शॉर्टेज है वर्ल्ड में, कि अगले 10-15 साल के अंदर पानी नहीं मिलेगा।
अब उसको वो सीरियसनेस पता चल गई, तो राम सिंह को वहां पे जो सुना उसमें से जो उसको याद रहा वो इसको सुना रहा है साहब। 4 पैग अंदर गया है, वो स्पीकर ही बन गया। और वो राम सिंह सोचता है यार गाली देता तो उससे तो अच्छा है, जो बोलना है बोलने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। लास्ट में यहां तक बोल देता है कि राम सिंह तुझे मालूम नहीं है, तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर होगा ना तो पानी की वजह से होने वाला, और तुम जो काम कर रहे हो ना वो इतना उम्दा काम कर रहे हो, मैं सोचता हूँ अगर सर्विस अबो सेल्फ किसको देना चाहिए तो तुमको देना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दूसरे दिन ये रमेश भाई लिफ्ट में जाता है, लंच टाइम में अपने घर पे जाता है, तो वो बंदा तो खड़ा है, स्टूल तो बाहर रखा है उसने। अब उसको बोलता है भाई तू क्या कर रहा है, स्टूल किधर है? बोलता है क्या साहब आपने तो बोला स्टूल बाहर रखो। बोले देख भाई, सुबह में पीक टाइम में और शाम को पीक टाइम, वही टाइम पे 1 घंटा तेरे को स्टूल बाहर रखना है, दोपहर में तो कोई आता नहीं है, स्टूल अंदर रखो। बोलता है तुम्हारा एज कितना है? बोलता है 62। अब उसने वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस का एक सेशन सुन लिया था जिसमें बताया गया कि 50 साल के ऊपर आप अगर ज्यादा खड़े रहते हो तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसको बोलता है भैया तू ज्यादा मत खड़ा रहे, तेरे को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और इतनी अच्छी लैंग्वेज में बोला कि वो जो लिफ्टमैन था वो भी हैरान हो गया कि आदमी को क्या हो गया, उसको क्या पता कि ये बंदा प्रेसिडेंट बन गया। बाद में उसको पूछता है तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले साहब 3। बोले देखो 5 साल के नीचे का बच्चा होगा ना तो 28 सितंबर को पोलियो का टीका लगाना मत भूलना। अब ये रमेश भाई को 10 साल तक रोटरी पोलियो रोटरी का प्रोग्राम है वो भी मालूम, प्रेसिडेंट बन गया। पत्नी को बोलता है कि 5,000 में कौन सी स्कूल में एडमिशन मिलता है? बोले उसको 15,000 रुपया दो और लड़की का दाखिला कराओ, और उस लड़की का जो भी एजुकेशन का बुक्स का जो भी खर्चा होता है वो पूरा खर्चा ये साल के लिए मैं स्पॉन्सर करता हूँ। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रेसिडेंट ब्रिंग्स। सो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, इफ यू आर अ रोटेरियन, आप जब मेंबर किसी को लेते हो ना, वो बंदे से कमिटमेंट लो कि तुम एक दिन रोटरी में जरूर प्रेसिडेंट बनेगा। ही शुड बी विलिंग टू ज्वाइन रोटरी बेस्ड ऑन दैट ही और शी मस्ट बिकम प्रेसिडेंट वंस, तभी आपको रोटरी पूरी समझ में आएगी। एंड वत्सल, जो लीडरशिप रोटरी में है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, club president is one of the finest leadership in Rotary because they are the action president, they are doing the work. District governor, RI director, RI president, that is administrative leader, they don't do project, club president do project. So transformation यहाँ पे ज्यादा होता है because you are doing it and they are saying it कि ऐसा करो. So there is a difference between doing and being. So you are being part of that transformation. मैं जैसा हार्दिक ने कहा, मेरा एजुकेशन गुजरात में हुआ है और मुझे मालूम कि हमारे कॉलेज में जो इंग्लिश के जो टीचर थे, उस जमाने में इंग्लिश बोल नहीं सकते थे आप। अगर किसी को हाउ आर यू बोल दिया कॉलेज में तो सामने से आवाज आती थी, क्या रे अंग्रेज की औलाद, सीधा सीधा गुजराती में बोलना। मुझे मालूम है मेरे कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर झाला साहब थे, राजकोट से आए थे, राजकुमार कॉलेज से, वो इंग्लिश भी गुजराती में सिखाते, नहीं तो उसके क्लास में कोई बैठता नहीं था साहब। सो मैं जब बंबई में आया तो मेरा पहला इंटरव्यू हेक्स इंडिया में दिया, 2.5 घंटे के इंटरव्यू में केवल 2 सेंटेंस बोल सका मैं। सो दैट वाज माय लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, एंड टुडे व्हाटएवर आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ रोटरी. सो आई वो रोटरी, रोटरी चेंज्ड माय लाइफ एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन. सो जब मेरा प्रेसिडेंटशिप के बाद में मैं बात करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि एज अ क्लब प्रेसिडेंट मेरे टाइम पे 4 मीटिंग होते थे महीने में, सो टोटल 52 मीटिंग. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो टास्क है प्रेसिडेंट के लिए, वो 52 में से 10 मीटिंग आप निकाल दो, ओसीबी, फैमिली नाइट, हर वीक में 42 स्पीकर कहाँ से लेके आओगे आप? और अगर आपका क्लब मेट्रो जैसा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिसोर्सेज इतने हैं. बट देयर आर क्लब, हमारे उधर इंटीरियर में पालघर है, दानू है, जहाँ 20 मेंबर 22 मेंबर का क्लब है, रेगुलर मीटिंग में जाएंगे तो 10 आदमी ढूंढने पड़ते हैं, वहां पे स्पीकर कहाँ से आएगा? सो रोटरी इनइफेक्टिव हो जाता है वीकली मीटिंग के बिना. तो हमारे 2005 में हमारे एक मेंबर थे रोटेरियन गोपाल मंदानिया, जो कि अभी पास गवर्नर है, उन्होंने एक स्पीकर डायरेक्टरी निकाला. प्रीपेड्स में हर एक प्रेसिडेंट को उन्होंने हैंड ओवर किया ताकि वो प्लानिंग कर सके अपने साल में. तो मुझे भी फोन आया, बोले विनोद तुम अच्छा बात करते हो, तो मैंने उनको नाम दिया और बाद में टॉपिक दिए रोटरी के, नॉन रोटरी के, और मैंने उनको बोला नीचे बड़ा स्टार करना, वो हाउसिंग लोन या इंश्योरेंस जैसा नहीं जो पढ़ने को ही नहीं आवे. बोल्ड राइटिंग में लिखा कि अगर किसी क्लब में कोई स्पीकर नहीं मिलता है, और कोई क्लब में लास्ट मोमेंट में स्पीकर कैंसिल भी होता है इमरजेंसी में, और स्पीकर कैंसिल होता है बाद में आपको एक दिन पहले कोई नया स्पीकर मिलता नहीं, बिकॉज एटीट्यूड आता है ना, आदमी बोलेगा अरे मैं क्या फ्री बैठा हूँ तो मेरे को एक दिन पहले बोलता है. रोटरी में ऐसे भी लोग हैं.
तो मैंने वो लिखा कि किसी को नहीं मिलेगा या कभी भी स्पीकर चाहिए, आई एम अवेलेबल ऑन एनी रोटरी टॉपिक। अब जैसे डायरेक्टरी रिलीज हुई ना साहब, आई वाज फ्लडेड विद द इनविटेशन, बिकॉज कुछ क्लब ऐसे थे जहाँ पे इंटीरियर में कोई जाता नहीं था, और जून, खास करके जून, मई जून, जहाँ पे आपका ओसीवी खत्म हो जाता है, तभी एक्चुअली ज्यादा करके 90% प्रेसिडेंट बिकम आईपीपी ऑन ओसीवी, और दिवाली का टाइम है जहाँ पे ऑडियंस नहीं रहता है, तभी कोई स्पीकर नहीं आता। एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू क्लब, लास्ट मोमेंट में कोई 2 दिन पहले बोलता है तो भी मैं अवेलेबल हूँ। सो मुझे, मेरे लिए वो प्रैक्टिस हो रहा था, 2005 की बात कर रहा हूँ, और वो एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगा। बट एक क्लब जिसने मेरा कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे लेके गया, जैसे मैंने कहा हर एक क्लब का अपना कल्चर है। आप मेट्रो में बैठे हैं, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जैसे बम्बई की मैं बात करूं, जो क्लब में मेंबर हूँ, दहीसर, दैट इज द एंट्री ऑफ मुंबई, और एक्सटेंड जो बॉम्बे क्लब मेन है, जो ताज में मीटिंग होता है, वो साउथ मुंबई हो गया। मैं दानू से स्टार्ट करूं तो दानू, पालघर, हमारे एरिया में रोटरी 80% दिल से और 20% यहाँ से। और जैसे जैसे हम मेट्रो की तरफ जाते हैं, साउथ मुंबई जाएंगे, मेन बॉम्बे क्लब 80% यहाँ से, 20% यहाँ से। ये फर्क हर एक क्लब के अंदर है। तो हमको भी, जैसे गुजरात से था, इंग्लिश बोलने को नहीं आता था, तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहता था। और एक डायरेक्टरी के बाद में एक दिन ऐसा हो गया कि हमारी क्लब मीटिंग चालू थी और एक लेडी का फोन आया। मैंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, बोले मिस्टर विनोद। आई सेड यस। सी आई एम रोटेरियन भावना कॉलिंग फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे सीलैंड। बॉम्बे सीलैंड सुन के मैं एकदम हैरान हो गया। तो मैंने बोला यस मैम, सी Rotarian Lata Subraidu was supposed to come to our club as a speaker on Friday, but due to ill health, she is not able to make it. She has suggested your name, that you are a wonderful speaker and you speak on real estate. Would you be able to make it to our club? अब इतनी फास्ट वो इंग्लिश बोला ना, तो मैं थोड़ा तो रुक गया। I was not so fluent that time in English. लेकिन मैंने भी कॉन्फिडेंस एकदम अंदर से लेके उनको सामने जवाब दिया, मैम आई एम इन द मीटिंग, कैन आई कॉल यू बैक, ऐसा करके मैंने फटाक से फोन रखा। और अंदर से इतना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मुझे लगा मैंने साउथ बॉम्बे की क्लब के साथ इंग्लिश में बात किया, वो भी उसको होल्ड पे रखा कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, मैं डिसीजन लूंगा। और जैसे हमारे क्लब की मीटिंग खत्म हुई, हमारे क्लब में एक पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उनसे मैंने बात की। मैं बोला सर ऐसा ऐसा क्लब से फोन आया। अरे बोले वो तो बहुत बड़ा क्लब है, उनका रेडियो क्लब में मीटिंग होता है कोलाबा में। तो मैं खुश हो गया, मैंने तुरंत वो मैडम को फोन किया। मैं बोला मैडम आई विल कम, मैं आपको ईमेल आईडी भेजता हूँ, आप मेरे को ऑफिशियल मेल डालिए। अब ऑफिशियल मेल इसलिए कि मैं 4 आदमी को दिखा सकूं, रिकॉर्ड में रहे अपने पास कि भाई अपने को बॉम्बे सीलैंड से इनविटेशन आया। उनका मेल आ गया दूसरे दिन। अब मैंने क्या किया कि मैं रियल एस्टेट पे बात करने वाला था। हमारे क्लब में एक मेंबर था जो रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। उसको बोला भाई फ्राइडे को शाम को मेरे साथ चलना है। बोले क्यों? मैं बोला मैं रेडियो क्लब में बात करने वाला हूँ रियल एस्टेट के ऊपर। उसको क्यों लेके जाना है? ताकि वो हमारे पूरे रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन में बोल सके विनोद ठक्कर इज अ वेरी गुड स्पीकर, उसको इतने बड़ी क्लब से इनविटेशन आया एज अ स्पीकर। और हमारे क्लब में दूसरा एक बंदा सीमेंस में काम करता था, वर्ली में उसका ऑफिस, राजेंद्र उन्नी कृष्ण, वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत फैला हुआ था। उसको बोला भाई तू बस में नहीं आने का, मैं तेरे को पिकअप करता हूँ। वो देख लेगा तो वो दूसरे क्लब को जाके बोल सकता है विनोद ठक्कर इज अ वेरी गुड स्पीकर, यू कैन इनवाइट हिम एज अ स्पीकर। मतलब ये मेरी उस टाइम पे पर्सनल ऐसी दिमाग के अंदर आइडिया आई कि मैं ऐसा करता हूँ। और ये दोनों को साहब मैं बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ। अरे रेडियो क्लब में ऐसे किसी को नहीं बुलाते, यू नो, दे सी द कैलिबर ऑफ द स्पीकर। बड़े बड़े स्पीकर आते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनका हर क्लब का मीटिंग है ना कॉकटेल मीटिंग रहता है। और मुझे जितना समझ में आता था इमेजिनेशन में, वो सब फेंक रहा हूँ, बड़े हवा पैदा कर रहा हूँ। सर 2 दिन में रात को सोया नहीं, और मुझे जो मिलता है मेरे बिजनेस में, फैमिली में, उसको बोलते जा रहा हूँ भाई फ्राइडे को इवनिंग में मैं नहीं हूँ, मेरे को रेडियो क्लब में जाके बात करना है। और मैंने मेरा लाइफ में एक ही टाइम प्रेजेंटेशन दिया लैपटॉप के ऊपर, मेरी ऑफिस में जाके तैयार किया पूरा। जिस दिन जाना था उस दिन दोपहर में 2 बजे मैंने मिरर के सामने सूट पहन के बाकायदा प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस इसके लिए की कि बॉम्बे के क्लब वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आई एम अ गुड स्पीकर, भले मैं दहीसर से। वो आप खुन्नस बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन वो अंदर से था एक कॉम्प्लेक्स। उस दिन आया, मैं निकला 5 बजे, तो मेरे 2 बंदे को बोला अपन 5:30 बजे निकलेंगे। बोले यार 1 घंटे में तो पहुंच जाएंगे, क्यों इतना जल्दी जाने का? मैं बोला बीच में टायर पंचर भी हो सकता है,
अपने को वहां पे टाइम पे पहुंचना है, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसे करके साहब हम लोग 7:15 बजे बराबर पहुंच गए वहां पे रेडियो क्लब के बाहर। और जैसा एंटर किया तो वहां पे वॉचमैन ने बोला फर्स्ट फ्लोर पे आप बैंक्वेट में जाइए। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग गए, ये दोनों मुझे देख रहे हैं, और जैसे बैंक्वेट में एंटर किया तो एक भी आदमी नहीं वहां। जैसे हम लोग 8:15 बजे आज आ गए वत्सल भाई ऑनलाइन, तो आप लोग 4-5 थे, तो दैट वाज अ गुड अटेंडेंस। सो व्हेन वी एंटर, वहां पे एक बंदा उधर टेबल के ऊपर वो वेटर जो था कुछ सेटअप कर रहा है। अब दूसरी एक चीज मैंने ऑब्जर्व की साहब, ये जो लोकेशन का फर्क है ना, वहां का वेटर भी मेरे बोरीवली के होटल के वेटर की कंपैरिजन में उसका एटीट्यूड भी अलग रहता है। तो वेटर को मैंने पूछा, वो काम कर रहा है, कि भाई रोटरी का मीटिंग यहाँ पे होता है क्या? वो ऊपर भी नहीं देख रहा है, काम करते करते मेरे को बोलता है थांबा, ये मतलब रुको आएंगे अभी, ही इज नॉट लुकिंग एट मी ऑल्सो। मैं बोला ये भी कला है यार। उतरे में उनका एक मेंबर आया, वो मेंबर को पता नहीं था कि मैं स्पीकर था। हमने इंट्रोड्यूस किया, थोड़े टाइम पे उनकी क्लब सेक्रेटरी आए, उसके साथ बात हुआ, ही न्यू। तो मैंने उनको पूछा कि वो भावना मैडम कहाँ पे, जिन्होंने मेरा मैंने उनको बायोडेटा वगैरह भेज दिया था, तो मुझे वो टेंशन था कि बायोडेटा उनके पास है। और कुल मिला के उनके कुछ और एक लेडी आई वहां पे जो चार्टर मेंबर थी, और उसने आके बोला विनोद जी मैं स्पेशल आपको सुनने के लिए आई। अब वो जो कॉम्प्लीमेंट था ना, वो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे हाईएस्ट कॉन्फिडेंस वाला, मतलब एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं ना जिसको, मैं तो इतना खुश हो गया। वो दो बंदे को तरफ देख रहा, मैं बोला देखो यार अपना नाम कितना फेमस हो गया, अभी तो फर्स्ट टाइम आया हम यहाँ पे। करते करते साहब उनके 5 लोग आ गए, सेक्रेटरी ने बोला आओ वड़ा पाव खाते हैं। हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं वहां पे, नाश्ता कर रहे। उतने में एक 6.5 फुट का बंदा एंटर हो रहा है। जैसे वो एंटर हुआ तो मैं भी उसको जानता था, वो भी मुझे जानता था, क्योंकि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरी डॉटर जब गई तो एयरपोर्ट पे उसका लड़का जा रहा था, हम लोग 3 घंटा साथ में थे और दोस्ती हो गई। तो जैसा उसने मेरे को देखा तो मेरे को बोलता अरे यार विनोद तू इतने किथे? मैं बोला पाजी मैं स्पीकर हूँ। मैं बोला तुम? बोलता मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं बोला ये कमाल है। जैसे आ गए और वहां पे जैसे मैंने बोला ना, यहाँ से सोचते बराबर 8 बजे का टाइम था मीटिंग का। 8:01 को प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी को बोला यार ये विनोद को पूछ लो कौन सी क्लब से है, बायोडेटा इंट्रोडक्शन के लिए। मैं बोला यार वो मैडम किधर है? बोले वो नहीं आनी, वो तो ट्रैफिक में। तो मैं बोला यार आप इंट्रोडक्शन छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। बात तय हुई, हम लोग डायस पे गए। अब डायस पे ये है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मैं बैठे और नेशनल एंथम शुरू हुआ। हमारे उधर नेशनल एंथम पहले शुरू होता है। नेशनल एंथम किया और इमीडिएटली जैसा नेशनल एंथम खत्म हुआ अचानक प्रेसिडेंट चिल्लाया वो वेटर के ऊपर, बोले यार माइक किथे है? मैं बोला पाजी यार इतने लोगों में माइक की जरूरत है, अपन ऐसे राउंड टेबल करके डिस्कशन कर लेंगे। बोले ठीक है। अब कोई क्लब की एक्टिविटी कुछ नहीं, बोले तुम चालू हो जाओ। अब मैं जब वो नेशनल एंथम हो रहा था ना, तब मैं देख रहा हूँ ऑडियंस में टोटल 6 लोग बैठे, 4 उनके 2 मेरे। मन में मैं खुश हो रहा हूँ कि साला 50% अटेंडेंस तो अपन साथ में लेके घूमते हैं। बट बिलीव मी, मैंने जितना तैयारी किया था ना राउंड टेबल करके, मैंने पूरा 30 मिनट जैसा प्रेजेंटेशन मैंने ऐसा ही सोचा कि सामने 600 लोग बैठे हैं, क्योंकि मेरी लाइफ का वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। तो मैंने जो भी था वो बोल दिया, दिल खोल दिया एकदम। और जैसा मेरा टॉक खत्म हुआ, वो जो लेडी थी चार्टर मेंबर, उसने एक क्वेश्चन किया, उनका कुछ प्रॉपर्टी का इश्यू था, तो मैंने उनको आंसर दिया। फिर दूसरा वापस कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन किया, तो मैंने वापस आंसर दिया उनको। अब जैसा वो तीसरा प्रश्न पूछने जा रही थी, प्रेसिडेंट ने रुका दिया उसको। बोले मैडम रुकिए, मीटिंग इज एडजर्न, मीटिंग इज एडजर्न। बोलता है यार विनोद मैंने शादी में जाना, ऐसा करके प्रेसिडेंट निकल गया उधर से। अब वो लेडी आके वापस मेरे से बात कर रही है और उतने में धीरे धीरे बाकी के मेंबर निकल गए। अब मेरे 2 बंदे पीछे से मुझे खींच रहे, बोले भाई अब जल्दी निकलो नहीं तो वड़ा पाव के पैसे भी अपना देना। ऐसे करके हम निकले वहां से। अच्छा मैं जब बात कर रहा था तो डायस पे था, तो मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, लेकिन सब खत्म हो गया जब हम नीचे उतरे होटल के, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि क्या हो गया। अब ये 2 बंदों को इतना मैं फेंक के लेके आया था यहाँ पे, दोनों को रुका है। मैं बोला देखो भाई सामने ताज होटल है, थोड़ा आगे जाएंगे तो ओबरॉय आएगा, ड्रिंक आप जो बोलो पिलाऊंगा, जो खाना खाओगे, जो आपको आइसक्रीम खाना है सब मेरी तरफ से, लेकिन मजा ले यहाँ से जाने के बाद किसी को भी बताया कि आज यहाँ पे क्या हुआ। सो दिस इज एक्चुअल इंसिडेंट आई एम टेलिंग यू। और लेकिन ये इंसिडेंस होने के बाद वत्सल ऐसा हो गया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया सर
कि अभी मुझे लगता है मैं कहाँ पे भी जाके कुछ भी बोल सकता हूँ। मैंने आज तक इतने साल में कभी कोई प्रेसिडेंट को ये पूछा नहीं कि आपकी क्लब में कितने मेंबर है और अटेंडेंस कितना होगा, इससे तो कम हो ही नहीं सकता सर रोटरी। सो ऐसी घटनाएं अपने आसपास होती है, बट वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हमको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। हर एक रोटरी में से कुछ अच्छी चीजें निकल के आती है। मुझे ऐसा लगता है मैं आज जो भी बोल रहा हूँ ना, दैट वाज माय फाउंडेशन एज ए स्पीकर। वो जो कॉन्फिडेंस वहां से मिला है ना, आदमी को अगर लाइफ में ये हो जाता है ना कि इससे खराब हो नहीं सकता है, तो उसके बाद जो भी होता है वो ग्रोथ ही होता है आपका। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। अब प्रीपेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग प्रीपेड्स में एक बार गए थे, तो पत्नी मेरी कभी कभी आती है रोटरी में। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन पैराग्लाइडिंग इन योर लाइफ। पैराग्लाइडिंग विच इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो हम लोग प्रीपेड्स में से ब्रेक मिला हमको, तो पंचगिनी में टेबल टॉप पे जाके पैराग्लाइडिंग करने गए बच्चों के साथ में। तो मेरी वाइफ ने मेरा नाम भी लिखवा दिया, पैसा भर दिया। तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में वो इंस्ट्रक्टर को पूछे बिना वो सामान ऐसे जैसे मेरे को सब आता है उठा के भागने लगा। और जैसे भागा ना साहब, तो ऐसा लंबा हो गया, मतलब इतना स्किट हो गया कि पाँव में पूरा ढीचन मतलब छोला ही गया। वो डरी गया एकदम। मैं यार ये तो गड़बड़ है। तो इंस्ट्रक्टर पीछे से भागते हुए आया, मेरे को बोलता है भाई साहब हमको सुनो जरा, ये प्रोफेशनल है, ऐसा करो मत, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसने वापस मुझे बांधा, सिखाया सब, बोला अभी आप स्टार्ट कर। एंड देन एज पर हिज इंस्ट्रक्शन मैं थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वो पहली बार गिरा था ना, तो वो अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में था, तो कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाया। थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस गिरा। अब ये टाइम पे गिरा तो ज्यादा लगा। तो मैं बोला यार ये नहीं करना है अपने को, अननेसेसरी टेंशन। तो मैं बोला यार नहीं करना है। तो वाइफ उधर से आई, बोले क्या होगा? मैं बोला नहीं करना। अरे बोले क्या यार, तू शांति से करना। उधर देख वो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हो, सीनियर सिटीजन कर रहे हैं, थोड़ा बी कूल बोलता है। और अभी तुम अगर ना बोल देगा ना, वो 1500 रुपया गया तुम्हारा। अब ये 1500 रुपया गया बोला ना, दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मैं बोला ये तो चैलेंज हो गया है। मैं वापस गया सर, जाके मैंने पूरा मतलब कॉन्फिडेंट के साथ में फोकस करके अगेन आई वेंट बैक। और जैसा ऊपर गया ना सर, दैट वाज द अगेन अ मोमेंट फॉर माय लाइफ। पूरा एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो लाइफ में वहां से एक अलग ही लेवल पे गया। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, बट इफ यू हैव नॉट डन ना, यू मस्ट डू इट। और बीच में एक लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेता हूँ। बहुत फनी एक्चुअल इंसिडेंस है। Mehul bhai must be knowing Raju Subramaniam, past district governor from our club. So I was his district secretary in 2009-10. और हमारे वहाँ इंस्टॉलेशन में ऐसा होता है कि एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर होता है जो असिस्टेंट गवर्नर का इंट्रोडक्शन देता है इंस्टॉलेशन में, और असिस्टेंट गवर्नर इंट्रोड्यूसेस द गवर्नर। अब वो क्लब में ऐसा हुआ कि जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर था वो यूपी से बंदा था, आरपी सिंह फ्रॉम बॉम्बे नॉर्थ आइलैंड, वेरी सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट। और असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब बोरीवली डॉक्टर भरत पंड्या की क्लब से, ही इज एडवोकेट। राजू सुब्रमण्यम इज ऑल्सो काउंसिलर, करेक्ट, दोनों सेम क्लासिफिकेशन से। देखो कैसे ह्यूमर आती है। मैं फ्रंट रो में बैठा हूँ, आरपी सिंह अपने यूपी के एक्सेंट में इंग्लिश बात करता है, एंड ही वाज इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट। सो इंस्टॉलेशन में वो बोलता है, आरपी सिंह, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस अवर असिस्टेंट गवर्नर. But before I do that, let me compliment the outgoing president for a wonderful work he has done, and my best wishes to incoming president. And here I go to introduce assistant governor who is a junior liar. वो ऐसा करके उसने पॉज लिया. Everybody is looking here and there. राजू खास करके देख रहा है, डायस पे गवर्नर है, ये क्या बोल रहा है. But उसने कंटिन्यू किया. He has done his law from so and so college, practicing for last 15 years, and recently was awarded the best liar in the western zone of Mumbai. ऐसा करके उसने कंक्लूड किया कि here I present to you assistant governor, a very successful liar, Vinay Vyas, and I will also request him after his presentation to introduce a bigger liar who is our district governor. So इतनी छोटी बात है मैं बोलता हूँ, और ऑडियंस ने इतना मतलब दिल से हंसा है ना उस टाइम पे, आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। अभी आप ऑनलाइन देख लो ना, ऑनलाइन छोटी छोटी चीज। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट असेंबली थी ऑनलाइन में, हमारे एक रफीक लुलानिया है पालघर से, मेरे जैसे इंग्लिश बोलता है वो भी, ही वाज कंडक्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 3 स्पीकर थे, और ऑनलाइन एक स्पीकर आके 8 मिनट बात करता था, 2 मिनट क्वेश्चन आंसर होता था। तो 1 मिनट का सेशन खत्म हो गया एक स्पीकर का, एंड रफीक भाई इन्वाइटेड सेकंड स्पीकर,
तो सेकंड स्पीकर जब भी आए वो बात करना स्टार्ट करते थे, उतने में उसका वीडियो एंड ऑडियो दोनों बंद हो गया एकदम सडनली। तो एकदम शांति हो गई और अचानक रफीक भाई ने बोला, फ्रेंड्स आई थिंक वी हैव लॉस्ट द स्पीकर। ऐसा करके उसने पॉज लिया। मैं बोला क्या बोल रहा है भाई, स्पीकर तो जिंदा है। तो उतने में स्पीकर ने चैट बॉक्स में डाला कि फ्रेंड्स सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई हैव सम माय वाइफ हैव सम प्रॉब्लम, आई विल रिकनेक्ट। अब माय वाइफ हैज अ प्रॉब्लम तो सब लोगों को कोविड का टेंशन हो गया, बट बोलते हैं ना रोटरी मस्ट शो मस्ट गो ऑन। तो रफीक भाई ने बोला ठीक है, वी विल टेक थर्ड स्पीकर फर्स्ट बाय द टाइम थिंग्स गेट रिजॉल्व। अब तीसरे स्पीकर आके बात कर रहे हैं, उतने में अचानक वो दूसरे स्पीकर प्रकट हुए, वीडियो चालू हो गया उनका। जैसा वीडियो चालू हुआ तो रफीक भाई ने वापस उसको पूछा कि भाई सब ठीक है, वाइफ का तबीयत ठीक है ना? तो बोलता है वाइफ को क्या हुआ है? अरे आपने चैट बॉक्स में लिखा ना वाइफ का प्रॉब्लम है कुछ। अरे यार वाइफ का प्रॉब्लम नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम था। तो वाईफाई वाज डिस्कनेक्टेड, तो वो बंदा डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये ऐसी बहुत सारी घटना हमारे, आप है ना ध्यान से अगर रोटरी को देखेंगे ना, हमारे लाइफ में एक्चुअली रोज ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। हम लोग क्यों सीरियस होके घूमते हैं? आई थिंक लाइफ इज देयर टू एंजॉय, हमारे वहां पे है ना उस जमाने में एक हार्मोनी ग्रुप हुआ करता था। यहाँ हमारा गोरेगांव से लेके बैंड्रा के बीच में 18-20 क्लब ने एक ग्रुप बनाया था, हार्मोनी ग्रुप। उनका साल में 2 फंक्शन होता था। अब ये जो गोपाल मंदान है जिन्होंने स्पीकर डायरेक्टरी बनाई थी, एक दिन उनका मुझे फोन आ गया, बोले विनोद भाई सैटरडे को क्या कर रहे हो? मैं बोला बोले ना गोपाल जी फ्री हूं मैं। तो बोले यार मेरा गला एकदम खराब है, वो हार्मोनी क्लब में मुझे स्पीकर करके बुलाए। अब उनका 300-350 का ऑडियंस होता है, 18 क्लब है। तो मैं तो खुश हो गया, मैं बोला गोपाल भाई जाके आऊंगा यार। बोले ठीक है, वो लेडी प्रेसिडेंट का फोन आएगा, तुम कंफर्म कर लेना। परिमल भाई थोड़ो टाइम 4 मिनट आगे वयो गयो थे, बट बेयर विथ मी, दिस मस्ट बी द लास्ट वन। सो गोपाल भाई ने वो लेडी को मेरा नंबर दे दिया, बट मैंने फिर गोपाल भाई को पूछा, मैं बोला गोपाल भाई लेकिन क्या टॉपिक पे मुझे बात करना? तो बोले सेक्स एजुकेशन। मैं बोला गोपाल जी यार मैं तो रियल एस्टेट वाला बंदा हूँ, आप रोटरी में मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, पीस स्कॉलर भी दे दो, मैं उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा टॉपिक किधर है? बोले नहीं नहीं तू चिंता मत कर, मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं तेरे को भेजता हूँ, तो ओपनिंग रिमार्क में 1-2 जोक मार देना, यू आर अ ह्यूमरस पर्सन, और कंक्लूडिंग में एक शायरी बोल देना, तेरा काम खत्म। मैं बोला देखो गोपाल भाई कुछ गड़बड़ हुआ ना मैं आपका नाम दे दूंगा। बोले कोई टेंशन मत ले, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैं बोला ठीक है। जैसे उनका फोन रखा, वो लेडी का फोन आया, बोले विनोद जी थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट फोन में बचा लिया ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोला नो 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 प्रॉब्लम, इट वुड बी माय प्लेजर। बोले मीना जी को भी साथ में लेके आ। तो मैं बोला ठीक है, कोशिश करता हूँ, वाइफ ऐसे तो जाती नहीं है। सो बाय द टाइम आई रीच होम, पत्नी ने जैसे दरवाजा खोला मेरे को तुरंत बोला, बोले अरे वो कोई लेडी का फोन आया था, सैटरडे को कुछ प्रोग्राम। मैं बोला हाँ हाँ चलती हो तुम साथ में? तो बोले क्या प्रोग्राम क्या है? तो मैं बोला तुमको बताया नहीं उस लेडी ने? बोले नहीं नहीं, उसने तो खाली इतना बोला मीना जी आपको सैटरडे को विनोद जी के साथ में आना है बस। तो मैं बोला अपन वो महाबलेश्वर गए थे? बोले हाँ। मैं बोला वो पैराग्लाइडिंग किया था मैंने? बोले हाँ। मैं बोला मैं उसके एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो उसके ऊपर से लीडरशिप के क्या उसमें से मंत्र मिलते हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लीडरशिप थ्रू पैराग्लाइडिंग। तो उसको लगा यार इसमें क्या सुनने का है अभी, तो बोला ठीक है तुम जाके आओ। मैं सब गया उस दिन, गोपाल जी का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने 1-2 शायरी बोल दी, जोक बोल दिया, दे गॉट, मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई। तो ऐसे ही कभी कभी क्या है रोटरी में ये भी होता है, पब्लिक को खुश करने के लिए स्पीकर को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल जाता है। और मैं उस चीज को भूल गया बदसल। और 2-3 महीने के बाद मैं जब घर पे जाता हूँ तो अचानक पत्नी ने मुझे 2 पास थमा दिया हाथ में। संजीवनी भिलांदे बहुत अच्छी सिंगर है, जूने गाने बहुत अच्छा गाती है, मेरी फेवरेट भी है। तो संजीवनी भिलांदे का फंड-रेजिंग प्रोग्राम बाय हार्मोनी। तो मैं बोला ठीक है जाएंगे अपन साथ में। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया उस दिन। मैं घर पे जल्दी आया, पत्नी को लेकर बोरेली की तरफ गया, भाईदास पे हम लोग पहुंचे, तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे हम एंटर हो रहे ऑडिटोरियम में, सामने वो 2 महिला प्रेसिडेंट को देखा और मेरे दिमाग में ट्यूबलाइट हुई, लेकिन मैं कुछ सोचूं उसके पहले महिला प्रेसिडेंट नजदीक आ गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने पत्नी को इंट्रोड्यूस किया और वहां से उसने उठा लिया। बोले मीना जी आपके हस्बैंड के क्या कहने? पत्नी भी मेरी एकदम आईब्रो ऐसा ऊपर करके बोलती क्यों क्या हुआ? अरे आप उस दिन आए नहीं,
हमने आपको बहुत मिस किया। बोले अच्छा, अरे आपके हस्बैंड ने उस दिन क्या बात किया है? He got a standing ovation. He is an amazing speaker. He is authority on the subject. जैसा उसने ये बोला ना, पत्नी से रहा नहीं गया। उसने बोला क्या खाक? When he tried first time, he couldn't do it. So होता है सर, आप देखो, हमारे साथ रोज ये चीज होती है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको अंदर लेके जाते, इसको लाफ इट आउट। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर जितना जिंदगी में हंसोगे ना, न केवल आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप आसपास के लोग भी है ना, आपसे खुश हो जाते हैं। सो इन कंक्लूडिंग कुछ बातें मैं कहूंगा, एंड बिफोर आई कंक्लूड लेट मी एक्नॉलेज एंड confess that Rotary has changed me, you know, professionally, personally. As I said, I didn't know how to speak 2 sentences in English. मुझे जो लोग बचपन से जानते हैं, वो जब आज मुझे मिलते हैं, तो they just can't believe कि कोई एक इंडिविजुअल के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। पर हो सकता है कि मेरा जो रोटरी के प्रति पैशन है, प्रेम है, आप मुझे कभी भी कहाँ पे भी रोटरी में किधर भी खड़े कर देंगे, किसी से बात करना है, अगर मुझे गलती से कोई आदमी ये पूछ लेता है रोटरी क्या है, तो वो बंदा गया, उसका 1.5 घंटा गया 100%, एंड ही हैज टू बिकम अ रोटेरियन। मैंने एक बंदे को स्मशान में रोटेरियन बनाया सर, स्मशान में बात करके वो बंदे को रोटेरियन बनाया, तो उतना अभी अंदर घुस गया रोटरी, बट इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे। सो आई लव रोटरी, आई ओ एवरीथिंग टू रोटरी, बिकॉज अगर मैं रोटरी में नहीं होता तो शायद मैं फाइनेंशियली इससे भी ज्यादा पैसा कमाता, मेरी स्मार्टनेस से या जो भी है। लेकिन सही टाइम पे रोटरी में ज्वाइन होने से एट द एज ऑफ 31 मुझे लाइफ कैसे जीनी चाहिए ना, वो रोटरी ने सिखाया। रोटरी ने बैलेंस लाइफ होना चाहिए आपका। आज कितने लोग हैं जिसके पास बैलेंस लाइफस्टाइल है? बैलेंस लाइफ में क्या होता है? एक आपका फिजिकल है, दूसरा आपका इंटेलेक्चुअल, आपका बिजनेस है, थर्ड इज योर फैमिली, एंड फोर्थ इज योर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थिंक रोटरी इज अ 4 पिलर ऑफ माई लाइफ। आज लॉकडाउन के अंदर जो लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सोशल में नहीं कनेक्टेड है ना साहब, उस लोगों ने उनका एक पांव निकल गया है, एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस। उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत है। बिकॉज ऑफ रोटरी वी डोंट गेट दैट मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज हम रोटरी में जाते हैं तो हम डी स्ट्रेस हो जाते हैं। और मुझे याद नहीं कि रोटरी ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत कम मंदिर में गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब रोटरी में जाता हूँ, कोई प्रोजेक्ट में जाता हूँ, तो फॉर मी रोटरी इज लाइक अ टेम्पल। इट इज अ टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। आई थिंक दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड which help you to become a better human being, which builds your character. और सबसे अच्छी चीज अगर रोटरी से मुझे मिली है तो I found the purpose of my life as a human being. बहुत कम लोगों को मैं मिला हूँ जिनको ये मालूम है, सबको गोल मालूम है कि मुझे 5,000 करोड़ का कंपनी करना है, RI प्रेसिडेंट बनना है, ये करना है, वो करना है, बट बहुत कम लोगों को उसकी लाइफ का पर्पस मालूम। और मेरी लाइफ का पर्पस एक ही है कि मैं जो भी करूँ वहां से स्माइल अवे, मैं जिधर जाऊं लोगों को स्माइल बांटूं, किसी को हंसाऊं मैं। सो दैट इज द ग्रेट थिंग रोटरी हैज गिवन टू मी। हमारा जो अभी लॉकडाउन का जो 2 पीरियड गया है लास्ट 1 साल में, कुछ बातें व्हाट्सएप में इतनी अच्छी आती है तो मैं स्टोर करके रखता हूँ और शेयर करता हूँ। रोटरी हैज टॉट मी शेयरिंग एंड गिविंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग इफ यू कैन शेयर। सो कुछ पंक्तियां है जो एप्ट है लाइफ की फिलोसॉफी के लिए, और आज हम जो माहौल से निकले उसके लिए। हम सब हमको मालूम है जन्म हमारे हाथ में नहीं है और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये दोनों चीज है ना डेफिनेट। जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी है ही, चाहे मुकेश अंबानी होवे कि नरेंद्र मोदी होवे कि दुनिया का कोई भी आदमी होवे, उसको पता नहीं कब होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि उसको जाना है वापस। सो वापस जाना तो तय है, वापस जाना तो तय है, इसलिए मन भर के जिए, लिव लाइफ फुल्ली, लिव इन दिस मोमेंट। मन भर के जिए पर मन में भर के मत जिए, मन में भर के मत जिए। वी होल्ड लॉट ऑफ थिंग्स, वी होल्ड थॉट्स, वी होल्ड ग्रजेस, वी होल्ड मनी, वी होल्ड नॉलेज, वी होल्ड एक्नॉलेजमेंट, वी होल्ड सेलिब्रेशन ऑल्सो। मैंने लोगों को देखा है बर्थडे के दिन भी मुंह घुमा के रहता है, आप बोलते हैं हैप्पी, ठीक है यार हो गया, तो क्या है, व्हाई आर यू होल्डिंग? सो ऑलवेज बी इन अ गिविंग मोमेंट, सो डोंट होल्ड दिस। तो मन भर के जिए, मन में भर के मत जिए, छोड़िए शिकायत। वी आर ऑलवेज इन कंप्लेंट मोड, यू नो,
अरे यार लॉकडाउन में चलो वो वाइन शॉप बंद है, अरे लॉकडाउन में तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे जितना दूसरे के पास फैसिलिटी नहीं है भाई। हम लोग जितने अभी ऑनलाइन है ना, वी फॉल इन 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की जिनके पास इतनी फैसिलिटी है, इतना एजुकेशन है, फैमिली है, हेल्थ है, घर है, पैसा है, सब है आपके पास। बट तभी भी हम लोग वो 99% की तरफ देख रहे हैं कि कुछ फूट रहा है। एंड आई थिंक लॉकडाउन हैज टॉट अस कि भाई किधर भाग रहे हो, रुको, देखो कहाँ हो तुम, किसके लिए भाग रहे हो। सो छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए, बी ग्रेटफुल टू गॉड, टू पीपल अराउंड यू जिनकी वजह से आप यहाँ पे हो। करेक्ट, छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उतना तो मजा लीजिए। हमारे पास जो है उसकी तरफ हमारी नजर नहीं है सब, हम और लेने की चक्कर में जो है उसको एंजॉय नहीं कर रहे। जितना है पास पहले उतना तो मजा लीजिए। चाहे जिंदगी में जिधर से भी गुजरिए, चाहे जिंदगी में जिधर से भी गुजरिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। मतलब आप ऐसे जिंदगी जियो कि जहां से भी गुजरो ना तो लोग आजू बाजू में बोलने चाहिए यार मजा आ गया, ये बंदा या बंदिया है। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर एक दौर मजेदार है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा बचपन अच्छा था, रोटरी पहले अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी हर उम्र का मजा लीजिए। लुक एट अमिताभ बच्चन, at this age also he is living life like he is a child, क्योंकि वापिस जाना तो तय, वापिस जाना तो तय। Thank you Vatsal and all the members of Rotary Club of Ahmedabad Metro for patient hearing. I hope I could bring some smile on your life. Thank you. Thank you વિનોદ ભાઈ, thank you. બહુ સાચી વાત છે, જીવનની હર પળમાં ખુશી હોય છે, આપણે ગોતવી જોઈએ. A day without laughter is a day lost. That is what is said. અમે છે ને કાઠિયાવાડમાં અમે પોચકું મૂકનારા માણસો કહેવાય. બે સરસ વાર્તાઓ બોલતા હોય એમાં વચ્ચે વચ્ચે અમે આવું બોલીએ એટલે અમે બધા પોચકું મૂકનારા કહેવાઈએ. પણ ખૂબ મજા આવી. હું ભાઈ દીપક ઠક્કરને સેક્રેટરી એનાઉન્સમેન્ટ કરવા માટે આમંત્રિત કરું છું. Thank you, વિનોદભાઈ. તમે ઘણા બધા રોટેરિયન ઇન્ડક્ટ કર્યા છે, and I am one of them. And I thank you કે joining Rotary. Thank you so much, boss. Some announcement on birthdays and anniversaries. On 13th July, Dr. Kalpesh Shah. 14th July, Dr. Praveen Sharda. 19th July, Rutvik Shah. 20th July, Hardik Sompura. 23rd July, Rujuta Shah. We wish them a very happy birthday. Spouse birthdays: 19th July, Rita Hitesh Ramanuj. 20th July, Pallavi Mahesh Shah. 23rd July, it's okay, fine. Marriage anniversary: 13th July, Vaishali Ben and Ketan Bhai Modi. 16th July, Dr. Kalpesh Bhai and Sumira Bhabi. 17th July, Ghanshyam Bhai Acharya and Vrindaben. Now coming to upcoming programs. Friends, on 24th of July, Saturday, we have Fantastic Friends program, which will be first physical meeting of this year. And it is a Know Your Fellow Members at the Fern Hotel, SG Highway. It will be conducted by our past president, past president Deepak Pandya. We request all the members and their spouses to join the meeting. On 29th July, we have club assembly at our own club center. 8th August, Sunday, we are hosting a district event. It will be new members orientation program, and details will follow. Thank you. Parimal bhai, જી. there are few members from other club. IPP Poonam Devdas is from Rotary Club of Solapur, has joined, and past president Sanjay Shah also from Mumbai. So Rashik Haryani from Kalol. Just see few members. Yeah, great. Thank you all to for see joining. that. Yeah. સાચી વાત કરી વિનોદભાઈ. હું પણ જાહેર જીવનમાં ઠીક ફર્યો છું અને અંતે એવું કન્ક્લુઝન આવે છે મારી જાતે કે કદાચ રોટરી જેવી કોઈ સંસ્થા બીજી નથી. અહીંયા એ બધા જ 5 ગુણો 5 આંગળીના છે. અને આપણે અહીંયા લકી છીએ કે આપણે અહીંયા છીએ. હું
મારી અંગત રીતે વત્સલભાઈનો અને ટીમ 21-22 નો આભાર માનું છું મને એમઓસી નો મોકો આપવા બદલ. હું રાજેશભાઈ ગણાત્રાને વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે આમંત્રિત કરું છું. થેન્ક યુ વિનોદભાઈ, આટલી સરસ તમે ટોક આપી. અને હું મીના ભાભીને પણ થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ કે એમને તમને આટલો સમય આપ્યો એકલા રહેવા માટે. અને તમારી એક વાત પરથી મને એક સરસ વાત યાદ આવી કે પહેલાના જમાનામાં છે ને જમવા બેસતા ને તો સાડુભાઈ જોડે બેસતા. લાડવા બેસવા આવે ને એટલે કે આને આપો ને આને આપો. તમે પેલું ફ્લાવર ની વાત કરી ને એટલે આ સાડુભાઈ જેવું હોય છે એમાં. એટલે બહુ સરસ રીતે તમે રોટરી વિશે કહ્યું અને રોટરીનો આ પણ એક દ્રષ્ટિકોણ હોઈ શકે એવું કદાચ આજે ઘણા બધાને પહેલી વાર ખબર પડી હશે. પણ મારા જેવા મેમ્બર જે છેલ્લે બેઠા હોય ને આ તમારી જેમ ઓબ્ઝર્વેશન જ કરતા હોય કે હવે આ સ્પીકર આ બોલશે, આ સ્પીકર આ બોલશે. પણ તમે એને એક બહુ સરસ રૂપ આપી અને આ રીતે આ વખતના વર્ષમાં બહુ એક હાસ્ય ના રૂપમાં આગાઝ કરાવ્યો છે. એના માટે તમારો દિલથી આભાર માનીએ છીએ. પરિમલભાઈ, તમે સરસ એમઓસી કર્યું એના માટે આભાર. અને જેટલા પણ મિત્રો આ બધા મીટિંગમાં હાજર રહ્યા એના માટે આભાર. અને રશ્મિભાઈ, તમે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી એના માટે તમારો અને વત્સલભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. હવે આપણે રાષ્ટ્રગીત ઉભા થઈને ગાઈશું અને તે સાથે પ્રોગ્રામ સમાપ્ત કરીશું. જન ગણ મન અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા. પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ બંગા વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્ચલ જલધિ તરંગા. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता जय. मीटिंग इज एडजर्न्ड. થેન્ક યુ વિનોદભાઈ, બહુ મજા આવી ગઈ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. રીલી વી એન્જોયડ. હા, મેં તમને ત્રીજી